Just a basic level introduction. I graduated back in 2011 from FAST University. Then I actually did a job for 2 years, and then in 2013 I started my own company called IdeaFusion, and since 2016 we have been working in the blockchain space, trying to explore multiple avenues. Have been one of the pioneers in Pakistan in terms of adopting the technology and all exploring the different aspects, because initially there were no help available, no documentation available. So we had to do a lot of hard work in order to just engage with the concepts of the technology, because usse pehle we were all working in the classical systems, जो कि मतलब कह लो कि ट्रेडिशनल डेटाबेस बेस्ड मैनेजमेंट होती थी of data, and then actually moving completely towards this thing was quite a big challenge. At उस time पे मतलब इतना मतलब डेवलपर कम्युनिटी भी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, और कंटेंट भी उस तरह से ट्रेनिंग्स का अवेलेबल नहीं था. So it was quite a challenge to start at that time, but we took that step, and inshallah अभी भी मतलब इसको constantly learn कर रहे हैं, because you cannot actually grab everything of a specific technology as well. तो हमारा भी constantly एक exploring phase है जो कि चल रहा है, and उस लिहाज से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह से भी नॉलेज को शेयर किया जा सके. सो विद रेफरेंस टू आवर सेशन टुडे विद कोलैबोरेशन विद डाइस, so I welcome you all, and I really apologize for a little delay that happened and to keep you waiting as well. So coming to the point, I'll just share my screen to actually start things up. So just start with the agenda of what we have to discuss in this session. So this will be an agenda for today. Initially, we were discussing the introduction to the blockchain technology, क्या technology as such क्या है, ठीक है. उसके बाद हम we will go towards components. इसमें थोड़ी सी हम technical details की तरफ जाएंगे. मतलब कि it would be more of a conceptual session rather than going into deep details of implementation side. But as a technology, आप इसको as a career किस तरह adopt कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आप इसमें करियर परस्यू कर सकें, ठीक है. सो आई विल बी डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लॉकचेन, द टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन दैट आर बीइंग यूज्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस यूज केसेस. वो भी मतलब कह लो कि हमारा एक मेन डिस्कशन टॉपिक रहेगा थ्रू आउट दिस टाइम. उसके बाद मतलब आप कह लो कि बिजनेस केसेस कौन कौन से ब्लॉकचेन में अभी तक डेवलप हो चुके हैं, हमने कौन कौन से डेवलप किए हैं, ठीक है.
तो दैट विल आल्सो बी पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन एज वेल. कैरियर एस्पेक्ट्स एज अनदर पार्ट. क्या आप अपना कैरियर किस तरह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में परस्यू कर सकते हैं, हाउ कैन आईडी फ्यूजन गाइड यू एज वेल along with this to actually कि आप क्या पाथ लें एंड what opportunities are awaiting you if you want to pursue your career in this domain. ठीक है. उसके बाद फ्यूचर ऑफ द ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी. ठीक है. वो आपको थोड़ा सा उसका एक टच भी दूंगा कि भाई फ्यूचर क्या है इस टेक्नोलॉजी का. ठीक है. दुनिया में क्या क्या डिफरेंट वर्टिकल्स जो हैं वो इसमें बिल्ड हो रहे हैं. ठीक है. लाइक इन एग्रीटेक, सप्लाई चेन, आपका मतलब फिनटेक. सो एवरीबडी इज एक्चुअली कमिंग इनटू दिस to implement that technology into their own business use case. ठीक है. एंड में फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशंस कर लेंगे. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले what actually started the concept of blockchain. उसमें it was actually introduced back in 2008 when a person, a mythical name called Satoshi Nakamoto actually introduced this as a white paper in 2008. He wanted to actually replace the centralized banking system with a decentralized architecture जिसमें लोग exchange of value कर सकें. ठीक है. और उन्हें किसी centralized body पे dependency ना हो. ठीक है. क्योंकि centralized dependency से बहुत ज्यादा issues भी create हो रहे हैं और फिर एक कह लो कि financial crisis दुनिया में आ जाए किसी टाइम भी. सो देयर इज नो पॉइंट कि आप मतलब कह लो कि 100% बैंकिंग चैनल्स पे डिपेंड करें. ठीक है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बैंक्स आर ओन्ड बाय सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज. ठीक है. और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज के लिए रेगुलेटरी बॉडीज मौजूद हैं, बट स्टिल देयर आर चैलेंजेस टू एक्चुअली इंश्योर दैट हर तरह की ट्रांजैक्शन की ट्रांसपेरेंसी या एग्जीक्यूशन को गारंटी बनाया जा सके. ठीक है. तो he actually came up with a concept as a technology जो कि ब्लॉकचेन है. ठीक है. उसके ऊपर उसने बिटकॉइन को एज अ एप्लीकेशन बिल्ड किया. सो बिटकॉइन इज बेसिकली एन एप्लीकेशन बिल्ड ओवर अ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर. ठीक है. सो as everybody knows that Bitcoin is right now leading the financial industry all over the world in many aspects for being providing the exchange of value. ठीक है. तो it is, everybody knows about it, it will be the most exchanged asset coming in the next 3 to 4 years. ठीक है. And it is expanding in value as well, as you all know. Right now it's around $50,000 per Bitcoin. ठीक है. And about 4 years back it was standing at 6,000 to 7,000. So this big trend has actually attracted the people towards it, to use it as a typical use case. ठीक है. अच्छा, अब जैसे मैंने बताया कि जो कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के प्रॉब्लम्स थे. ठीक है. उसमें आपकी एक तो हाई ट्रांजैक्शनल फीस. ठीक है. उस पे लोगों के बहुत ज्यादा कंसर्न्स थे कि यार मतलब हमें मतलब क्या बड़ा चंक अपनी ट्रांजैक्शन का, फॉर एग्जांपल हमने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है तो हमें बहुत बड़ा चंक जो है वो सिर्फ बैंकिंग चैनल्स को, पेमेंट गेटवेज को देना पड़ता है टू एक्चुअली गेट अ ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड. ठीक है. तो वो एक कह लो कि, और वो जो सेंट्रलाइज सिस्टम्स थे वो इस चीज को मैनिपुलेट कर रहे थे इन देयर ओन गेन्स टू एक्चुअली earn from it as a payment gateway. ठीक है. They actually hold your funds for a specific interval of time to earn from it as well. ठीक है. तो एक kind of एक मोनोपोली का होल्ड था ओवरऑल इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. सो बेसिकली तो सतोशी ने जो अपना आइडिया प्रेजेंट किया वो इस चीज का तोड़ ही दिया कि भाई हमें इन सेंट्रलाइज अथॉरिटीज के कंट्रोल से निकलना है. ठीक है. और पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पीपल, ताकि हमारे जो ट्रांजैक्शनल इश्यूज हैं जो हम बिकॉज ऑफ द सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग चैनल्स फेस करते हैं वो हम ना करें, एंड वी मूव ऑन विद आवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और एक्सचेंज ऑफ वैल्यू एट एनी टाइप. अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम जो कि बैंकिंग सिस्टम्स में था वो मतलब कि डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम एक तरह से मौजूद था. ठीक है.
काफी दफा आपकी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन बैंक के पास अपडेट नहीं होती और एक ही अमाउंट पर ट्रांजैक्शन 2 दफा हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास $500 है, ठीक है, वो $500 मैं एक सिनारियो के बेस पे या हैक की बेस पर ये चीज एग्जीक्यूट कर सकता हूँ कि वही 500 मैं 2 दफा खर्च कर दूं, किसी बंदे को दे दूं। ठीक है, बिकॉज डेटाबेस में ट्रांजैक्शन जो थी वो अपडेट नहीं हुई थी बिकॉज ऑफ एनी सर्टेन रीजन, because of any networking reason or any hack specifically that happened on a banking database। ठीक है, तो वो एक डबल स्पेंडिंग का प्रॉब्लम भी बैंकिंग सिस्टम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और फिर टाइम इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई इंटरनेशनल पेमेंट करनी है, सो देयर आर 3 to 4 इंटरमीडिएट बैंक्स दैट विल एक्चुअली इनेबल दैट ट्रांजैक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो वो मेरा भी टाइम, फॉर एग्जांपल मुझे पेमेंट अमेरिका से पाकिस्तान मंगवानी है, ठीक है, तो इट टेक्स अराउंड 3 to 4 days to actually execute that transaction and getting it dropped in my bank account। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने आके एज एन आर्किटेक्चर कि यार वी एक्चुअली प्रोवाइड यू इंस्टेंट लेवल ट्रांजैक्शन, कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन करो एंड विद इन रियल टाइम यू विल बी एबल टू सी इट इन द अदर पर्सनस अकाउंट और वॉलेट व्हाटएवर इट इज। ठीक है, और फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में कभी भी आ सकता है बेस्ड ऑन मतलब जो हमारा करंट सिस्टम चल रहा है, इट कैन ऑलवेज बी हमारे मतलब कह लो मल्टीपल फाइनेंशियल क्राइसिस दुनिया में आ चुके हैं। ठीक है, और मजीद भी आएंगे बेस्ड ऑन जिस तरह से डेट रेशियो बढ़ रहा है दुनिया का। ठीक है, तो उस सेंट्रलाइज सिस्टम के चुंगल से निकलने के लिए दे एक्चुअली केम अप विद अ डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लॉकचेन कि यार हम इन सेंट्रलाइज सिस्टम पर डिपेंड ना करें एंड वी डिस्ट्रीब्यूट द पावर अमंग द पीपल and execute our daily transaction, financial transactions जो भी हमारी हो रही। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि वाई ब्लॉकचेन। ठीक है, वो जैसे हमने डिस्कस किया, कन्वेंशनल बैंकिंग इज सेंट्रलाइज्ड इन पावर बट बिटकॉइन ब्लॉकचेन हैज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे बैंकिंग सिस्टम में हमारा सारी जो ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन है वो बैंक के पास स्टोर्ड है। ठीक है, वो डाटा या तो आपकी जो रेगुलेटरी बॉडी है मुल्क की उसके साथ भी वो भी एक खास परसेंटेज में शेयर होता है, कंप्लीट डाटा शेयर नहीं होता क्या किसने किसको कितने पैसे दिए। ठीक है, वो डाटा आपका जो प्राइवेट बैंक है वो ओन करता है। ठीक है, ही कैन डू एनीथिंग विद इट, ही कैन मार्केट देयर प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दैट डाटा, कुछ भी कर सकते हैं उस डाटा से। ठीक है, इट्स यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस। ठीक है, तो एक्चुअली ब्लॉकचेन ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हम डाटा को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, वी विल मेक द डाटा ट्रांसपेरेंट। ठीक है, वी विल डू ऑल द ट्रांजैक्शंस एंड एनेबल पीपल टू सी द ट्रांजैक्शंस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी ऑफ डाटा। ठीक है, एंड वी एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूट इट इनटू पब्लिक लेजर्स। ठीक है, लेजर कहते हैं, लेजर आपने जैसे अकाउंटिंग की जबान में जैसे सुना होगा, इट इज अबाउट रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, बुक कीपिंग द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, सो ब्लॉकचेन में जो ट्रांजैक्शंस हैं जो भी नेटवर्क के ऊपर हो रही थी वो सारी एक पब्लिक लेजर में स्टोर होती हैं। ठीक है, which are stored in any system that is connected to that specific blockchain network। आगे मैं थोड़ी सी की डिटेल में जो टेक्निकल थोड़ी सी डिटेल है उसमें आगे जाऊंगा। ठीक है, बट आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, अब इम्यूटेबल ट्रांजैक्शंस, इम्यूटेबल का मतलब है कि द ट्रांजैक्शन इफ हैपेंड वंस कैन नॉट बी हैक्ड। ठीक है, उसका रिकॉर्ड जो है वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, वंस इट गेट्स रिटन ऑन द लेजर, ठीक है, वो ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्डेड है कि नोबडी विल बी एबल टू अपडेट दैट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, उसकी वजह क्या है, वो क्यों नहीं कर सकता, वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, तो कन्वेंशनल बैंकिंग में हैक्स मौजूद है। ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है। ठीक है, डेटाबेसेस में सारी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो सेंट्रलाइज तरीके से स्टोर्ड है। ठीक है, तो इफ एनीबॉडी इज एबल टू get a entry point to that specific data, they will be able to retrieve it and use it for any purposes or even hack it or change it to the perspective के मतलब वो ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट के उसमें कंसिडर हो जाएगी। ठीक है, कि मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी कंसेंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इट्स कंसिडर्ड फ्रॉडुलेंट, राइट। सो
इस केस में हमारे पास जो सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम है, यहाँ पे हैकिंग पॉसिबल है, ठीक है। एनी ट्रांजैक्शन कैन बी ट्रेस्ड एंड एग्जीक्यूटेड विदाउट द कंसेंट एज वेल, ठीक है। अब जबकि ट्रांजैक्शन इन द ब्लॉकचेन आर इम्यूटेबल, दस कैन नॉट बी हैक्ड, ठीक है। ब्लॉकचेन में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा आर्किटेक्चर, ऐसा टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया गया है कि एक ट्रांजैक्शन जो होगी, इट कैन नेवर बी हैक्ड वंस इट गेट्स ट्रांसमिटेड टू द नेटवर्क, ठीक है। पूरे नेटवर्क पे जब ट्रांजैक्शन ट्रांसमिट हो जाएगी, इट कैन नॉट बी ब्रॉट बैक और चेंज्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अच्छा, ब्लॉकचेन में हमारे पास पब्लिक लेजर्स होते हैं। पब्लिक लेजर का मतलब है कि a list of transactions available to everyone that is part of that network, ठीक है। आपने दूसरे बंदे को पैसे दिए, उन्होंने आगे दिए, ठीक है। ये सब एक ट्रांजैक्शन है जो कि लेजर में स्टोर हो रही हैं, एंड एवरीबडी इन द नेटवर्क विल बी एबल टू सी दोस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है पब्लिक लेजर का, ठीक है। तो कन्वेंशनल बैंकिंग में इट इज नॉट देयर, ठीक है, कि आपको नहीं पता कि बैंक क्या क्या ट्रांजैक्शंस कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपने भी पैसा फॉर एग्जांपल बैंक में जमा करवाया है, ठीक है, वो आपके पैसे के साथ क्या कर रहे हैं, यू डोंट नो अबाउट इट, ठीक है। लेकिन क्योंकि उनका लेजर प्राइवेट है, दे डोंट एक्चुअली टेल यू कि हमने क्या क्या खर्चा किया और क्या क्या, मतलब हमारे पास जो पैसा था हमने उससे क्या क्या ट्रांजैक्शंस की, दे आर नॉट लायबल टू टेल यू, ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन एज एन आर्किटेक्चर ये चीज इंश्योर करता है कि हमारे पास पब्लिक लेजर मौजूद हो, एंड एवरीबडी दैट इज पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क विल बी एबल टू सी ऑल द ट्रांजैक्शंस, ठीक है, जो कि नेटवर्क में हो रही है। मतलब कि किसी भी टाइप के करेंसी मैंने किसी को भेजी है, इट कैन बी अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट कैन बी सप्लाई चेन बेस्ड ट्रांजैक्शन, इट कैन बी हेल्थ केयर बेस्ड ट्रांजैक्शन, किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को पब्लिक लेजर में अवेलेबल कर देना एक ब्लॉकचेन की स्ट्रेंथ है। अच्छा, चौथा जो हमारा बहुत बड़ा जो मेजर बेनिफिट था ब्लॉकचेन का, वो डबल स्पेंडिंग, ठीक है। डबल स्पेंडिंग का मतलब ये कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कोई पैसे दिए हैं, ठीक है, तो वो पैसे मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए, ठीक है। और कि मैंने अगर फॉर एग्जांपल आपको 500 रुपए दिए हैं, तो 500 रुपए मेरे पास किसी और को देने के लिए नहीं होंगे, ठीक है, वो अब आपके पास है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को भी ब्लॉकचेन ने एज एन आर्किटेक्चर सॉल्व किया, ठीक है, कि ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि मतलब एक पैसा जो मैं खर्च कर चुका हूं ऑलरेडी, दैट इज अवेलेबल फॉर मी अगेन टू स्पेंड इट, ठीक है। तो ये एक डबल स्पेंडिंग का बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि मतलब ब्लॉकचेन ने सॉल्व किया। एक ये छोटी सी वीडियो है विच आई वुड लाइक टू शो यू। अच्छा, इसमें जैसे एक कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है कि एक ट्रांजैक्शन जो कि सॉरी, अच्छा, ये एक ट्रांजैक्शन है जिसको द रिकॉर्ड कह रहा है वो, ठीक है। ये कोई भी एक ट्रांजैक्शन है, ठीक है। अब हम इस ट्रांजैक्शन को मतलब कि हम किसी भी एस्पेक्ट में ले सकते हैं, जैसे कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के एस्पेक्ट में ले लें, या हम कह लें कि कोई बिजनेस केस में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हो रही है, सप्लाई चेन बेस्ड ट्रांजैक्शन होती है, ठीक है, उसको हम इस वीडियो के पर्सपेक्टिव में एज अ रिकॉर्ड कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, उसको एक रिकॉर्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है? इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स connected together in such a case where every node hosts a public ledger, ठीक है। जो भी कंप्यूटर एक किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क का पार्ट होगा, वो कंप्लीट पब्लिक लेजर को अपने पास होस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि हर नोड के पास उस नेटवर्क में होने वाले हर ट्रांजैक्शन का डेटा इन अ फॉर्म ऑफ पब्लिक लेजर स्टोर्ड होगा, ठीक है। अब जो मैं आपको वीडियो में फॉर एग्जांपल दिखा रहा हूं, जो ये ब्लू डॉट्स नजर आ रहे हैं, दीज ब्लू डॉट्स आर द नोड्स, ठीक है, विच एक्चुअली होस्ट्स द पब्लिक लेजर, ठीक है, ऑफ दैट स्पेसिफिक ऑफ दोज रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग इन दैट नेटवर्क, ठीक है। तो बेसिकली अब इस रिकॉर्ड ने, जो रिकॉर्ड जो हमारी ट्रांजैक्शन थी, इसने नोड में अपडेट होना है। सो इट विल एक्चुअली, आप ये देख सकते हैं कि एक ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, एंड आफ्टर अ स्पेसिफिक वेरिफिकेशन प्रोसेस, क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने फॉर एग्जांपल हमने सेंट्रलाइज्ड बॉडीज को
एक आर्किटेक्चर में से रिमूव किया, ठीक है, तो हमें एक वैलिडेशन या वेरिफिकेशन मैकेनिज्म चाहिए था, ठीक है, जिसकी बेसिस पर हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिडेट हो सके और ये कंफर्म हो सके कि ये एक वैलिड ट्रांजैक्शन है, कि मतलब कि आई हैव द अथॉरिटी एंड आई हैव द रेलेवेंट एक्सेस राइट्स टू डू दिस स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, ठीक है। उस वेरिफिकेशन मैकेनिज्म को हम कंसेंसस एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। और कंसेंसस एल्गोरिथम को मैं इन डिटेल आगे की स्लाइड्स में एक्सप्लेन करूंगा, बट इट इज जस्ट दैट अभी मैं थोड़ा सा इसको बेसिक लेवल पे बता रहा हूं कि एक ट्रांजैक्शन हुई, उस ट्रांजैक्शन ने सारे नोड्स पे अपडेट होना है, क्योंकि सारे नोड्स जो हैं वो पब्लिक लेजर होस्ट कर रहे हैं, ठीक है। पब्लिक लेजर होस्ट कर रहे हैं तो हर जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका रिकॉर्ड सब नोड्स के पास होना जरूरी है, ठीक, ठीक है, जो मैंने अपने इनिशियल डिस्कशन में बताया था। अच्छा, तो ये ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ अ ब्लॉक, ठीक है। ये हमारा कह लें कि कोर ऑफ एनी कोर ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जैसे ब्लॉकचेन एज ए टेक्नोलॉजी एक लफ्ज ही ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है, इट्स अ चेन ऑफ ब्लॉक्स, ठीक है। तो एवरी ट्रांजैक्शन दैट हैपेंस एट एनी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल वो एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाती है, ठीक है। अच्छा, और हर ब्लॉकचेन नेटवर्क का एक ब्लॉक टाइम होता है, ठीक है, जिस ब्लॉक टाइम में जो उस स्पेसिफिक ब्लॉक टाइम इंटरवल में जो जो ट्रांजैक्शन बनेगी वो उस ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगी जो उस टाइम में ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। सो एवरी ट्रांजैक्शन विल बिकम पार्ट ऑफ दैट ब्लॉक, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि एक इथीरियम नेटवर्क है, ठीक है, इट्स अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है, उसका ब्लॉक टाइम इज 4 मिनट्स, ठीक है। तो एवरी 4 मिनट्स देयर इज अ ब्लॉक दैट इज जनरेटेड, ठीक है। और हर ब्लॉक उस टाइम इंटरवल में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही होंगी वो उस स्पेसिफिक ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट आई एम शोइंग इन द वीडियो, ये स्पेसिफिक जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई थी ये इस ब्लॉक का हिस्सा बनी, ठीक है। ये सारे जो भी ये ब्लू डॉट्स है ये सारे ऑल अदर ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग इन दैट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल बिकम्स पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, दिस ब्लॉक, सॉरी, ठीक है। अच्छा, अब ब्लॉक की एक आइडेंटिटी होती है, ठीक है, जो मतलब एक कह लो कि हर डेटाबेस में जैसे कोई भी रिकॉर्ड स्टोर होता था उसकी एक प्राइमरी की टू एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक रिकॉर्ड। इसमें ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक है, ठीक है, वो हमारा एक मेन कंपोनेंट है, तो उसकी एक आइडेंटिटी होती है जिसको हम ब्लॉक हैश कहते हैं, ठीक है। दैट इज स्पेसिफिकली यूज्ड टू आइडेंटिफाई दैट स्पेसिफिक ब्लॉक जिसमें वो ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। अच्छा, इसी ब्लॉक में ये इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है, ठीक है, और उसी ब्लॉक में हैश टू द प्रीवियस ब्लॉक भी स्टोर होता है कि यार ये किस ब्लॉक के बाद ये वाला ब्लॉक जो है वो जनरेट हुआ एंड इट गेट्स अटैच्ड टू द प्रीवियस ब्लॉक, ठीक है, ताकि मतलब हमारी चेन जो है वो बन सके, ठीक है, क्योंकि टाइम इंटरवल की बेसिस पर ब्लॉक जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा मकसद जो था वो चेन बनाना था टू एक्चुअली कि हम डाटा को इम्यूटेबल बना सके, ठीक है। सो every block has its own identity and pointer to the previous block to which it is attached to, ठीक है। इस तरह से काइंड ऑफ हमारा एक लिंक लिस्ट टाइप आर्किटेक्चर बन जाता है, ठीक है, जिस तरह लिंक लिस्ट अपने से अगले को पॉइंट आउट कर रही होती है, ठीक है, और टू वे लिंक लिस्ट भी होती है जो कि मतलब दोनों कर रही होती है, काइंड ऑफ कि हमारे पास प्रीवियस का रिकॉर्ड है, ठीक है। इस केस में हमारे हर ब्लॉक में एक उसकी अपनी हैश है स्टोर्ड और एक उसके पिछले जो उसका हैश था उसका हैश भी स्टोर्ड है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद व्हाट हैपेंस इज कि अब जब आपकी सारी ट्रांजैक्शंस ये जब ब्लॉक कंप्लीट हो गया इसका टाइम, ठीक है, तो देन दिस ब्लॉक्स इज वेरीफाइड, ठीक है, बाय द कंसेंसस एल्गोरिथम फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन जो कि उस टाइम पे हुई हैं, ठीक है, वो वेरीफाई होती हैं एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ द ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है, जो हमारा एक सारे ट्रांजैक्शनल इंफॉर्मेशन का रिकॉर्ड है, उसमें जाकर ये ब्लॉक जो है वो अटैच हो जाता है टू द प्रीवियस ब्लॉक जो उसे जनरेट हुआ था उसके साथ। सो ये आप देख सकते हैं जैसे हैशेस मैच होते हैं प्रीवियस ब्लॉक के और करंट ब्लॉक के, ठीक है। तो ये हमारा एक ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर बन गया, ठीक है। ये काइंड ऑफ एक मतलब एक बहुत मिनिमल सा आर्किटेक्चर लेवल एक्सप्लेनेशन थी, ठीक है। अच्छा,
थोड़ा सा मतलब कह लें कि इसको किस यूजर फ्लो के पर्सपेक्टिव से ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब कि एक किसी भी ट्रांजैक्शन का फ्लो क्या होता है, ठीक है, एक ब्लॉकचेन नेटवर्क में, ठीक है। सो अ ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड इन सोर्स सिस्टम्स, ठीक है। सोर्स सिस्टम्स क्या है, क्या किस चीज को कहते हैं कि यार देयर शुड बी सम इंटरफेस थ्रू विच आई एम एबल टू जनरेट अ ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब वो किसी बिजनेस केस में, जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया, कोई भी ईआरपी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस यूज केस की एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एक सप्लाई चेन है किसी एफएमसीजी का, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ नेशनल फूड्स का, ठीक है। तो उनकी एक पूरी एक सप्लाई चेन है, ठीक है, जिसमें मतलब प्रोक्योरमेंट भी आ जाता है, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटर्स भी आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स भी आ सकते हैं, रिटेलर्स भी आ सकते हैं। तो एक काइंड ऑफ सब स्टेक होल्डर्स उस सप्लाई चेन के मिलके एक नेटवर्क बना सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन उस स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर में होगी, ठीक है, उसके लिए कोई खास इंटरफेस चाहिए, ठीक है। वो इंटरफेस जो है वो हम उसको कोई भी एप्लीकेशन कहते हैं, बट ब्लॉकचेन की जबान में उसको वॉलेट कहते हैं, ठीक है। इट इज इंटरफेस टू एक्चुअली इंटरेक्ट विद एनी ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बिजनेस यूज केस की बात करें तो हम डिफरेंट ईआरपीज में, ठीक है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करेंगे और उनको इंटीग्रेट कर देंगे विद कोर लेवल ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, ताकि वो जो भी उनकी रेलिवेंट एक्सेस की ट्रांजैक्शंस हैं वो एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होता है, द ट्रांजैक्शन इज इनिशिएटेड बाय एनी सोर्स, ठीक है, कैन बी एनी यूजर, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी को पैसे भेज रहा है, ठीक है, वो एक ट्रांजैक्शन अपने पास अपने वॉलेट पे इनिशिएट करेगा, ठीक है, ताकि वो एक ट्रांजैक्शन के तौर पे आइडेंटिफाई की जा सके ब्लॉकचेन नेटवर्क में, ताकि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा बने, एंड देन द प्रोसेस गोज ऑन, ठीक है। फिर उसमें साइनिंग का प्रोसेस होता है कि हर कभी कोई भी ट्रांजैक्शन जनरेट हुई है ना, तो उसको किसी ने साइन करना है टू एक्चुअली लेट द नेटवर्क नो कि ये किसने ट्रांजैक्शन की है, ठीक है। तो उसमें एक साइनिंग प्रोसेस भी होता है, ठीक है। जस्ट लाइक यू डू एनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन, तो आपने चेक कैश करवाना है, यू एक्चुअली डू अ साइनिंग ऑन द कैश कि यार पता चल सके कि यार कौन से बैंक अकाउंट का कैश है और किस बंदे ने इसको ऑथेंटिकेट किया टू एक्चुअली गेट द ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो इस तरह ब्लॉकचेन में भी साइनिंग मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है। वॉलेट की जो आपने बताया, जैसे कि एक इनिशिएट करने के लिए हम ट्रांजैक्शन करते हैं ना इसमें, तो अब जैसे हम लोग ऑनलाइन जो हमारी बैंकिंग होती है उसके अंदर भी हम लोग जब कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हैं तो उसके बदले हमें एक ओटीपी आता है, ओटीपी होता है जो वन टाइम पासवर्ड। तो वो बेसिकली वो भी सिमिलर चीज ही है ऑनलाइन बैंकिंग के अंदर भी, जैसे ओटीपी है और इसमें हम वॉलेट को यूज कर रहे हैं इनिशिएट के लिए। हाँ, लेकिन हमने मतलब कह लो इस केस में हमने पूरे प्रोसेस को टेक्नोलॉजी बैक कर दी, ठीक है। और ब्लॉकचेन एज एन आर्किटेक्चर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, रादर देन कि हम कस्टम एप्लीकेशंस के थ्रू वो चीज अचीव करें, ठीक है। तो अब फॉर एग्जांपल एक चीज अगर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अवेलेबल है, सो यू कैन एक्चुअली मूव अहेड ऑफ इट टू प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी टू द इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि किसी फाइनेंशियल सिस्टम में इंप्लीमेंट हुआ हो, ठीक है। ये चीज है। फिर ओटीपी में भी बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं, ठीक है, जो मतलब केसेस होते हैं कि मतलब आपका फोन नंबर भी चला गया, आपकी ईमेल भी चली गई, ओटीपी या ओटीपीज जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, लेकिन इस केस में उस लेवल को भी कवर किया गया है, ठीक है। यहाँ पे भी खैर आपकी प्राइवेट की निकल जाए तो इट कैन बी मिस यूज, बट मतलब उसको मतलब कह लो कि इस तरह से कवर किया जाता है कि यार प्राइवेट की अगर आपसे मिस आउट होगी तो यू विल नेवर बी एबल टू एक्सेस योर वॉलेट। there is no process of recovery because there is no centralized body to actually ensure that कि यार उधर कहीं पे आपकी प्राइवेट की स्टोर नहीं है, ठीक है, कि आप उसको रिकवर करके दोबारा यूज करना शुरू कर दोगे एप्लीकेशन, ठीक है। ये भी उसका एक सिक्योरिटी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। एक रिकवरी फेज की वो है इशू, लेकिन सिक्योरिटी का भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि देयर इज नोबडी दैट विल बी एबल टू जनरेट योर प्राइवेट की बाय एनी मैकेनिज्म पॉसिबल। Only the owner and it's generated once at the setup of the wallet application, ठीक है। अच्छा, फिर ये जैसे ट्रांजैक्शन के मैंने कहा ट्रांजैक्शन साइन हुई, ठीक है, साइन होने के बाद इट इज देन ब्रॉडकास्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन होकर ब्लॉक का हिस्सा बन के पूरे नेटवर्क पे ब्रॉडकास्ट होना, ताकि सारे पब्लिक लेजर्स जितने भी नोड्स हैं वो अपने पास अपने लेजर्स को अपडेट कर लें, ठीक है। ये ब्रॉडकास्टिंग का मैकेनिज्म। अच्छा, जो मैंने बात की कि ब्लॉकचेन सिस्टम सिक्योर है,
ठीक है, उसकी क्या मतलब वो है स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, क्यों सिक्योर है, बिकॉज द डाटा ऑफ ट्रांजैक्शंस इज सो मच डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नोड्स, ठीक है, नोड्स इतने ज्यादा होते हैं, इतने ज्यादा फैले हुए होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन है या इथेरियम है, द नोड्स आर ब्रॉडकास्टेड सो मच कि nobody will be able to control that data, ठीक है, और जब वो कंट्रोल नहीं कर सकता तो उसको चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, एक जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो डाटा को कंट्रोल कर सकता है वो 51% कंट्रोल है, 51% अटैक जिसको कहते हैं, जो एक ब्लॉकचेन का एक इशू है, ठीक है, बट बड़े नेटवर्क में वो अचीव करना नामुमकिन है, ठीक है, लेकिन छोटे नेटवर्क में जो आप फॉर एग्जांपल हैकिंग के जो आप केसेस सुनते हैं जो ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में होते हैं, ठीक है, उसका वजह ये होती है कि इधर वो कहीं ना कहीं उस डाटा को सेंट्रलाइज कर रहे होते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को, ठीक है, या उनके वैलिडेटर्स इतने कम होते हैं उन ट्रांजैक्शंस के, ठीक है, कि एनीबॉडी विद मच मोर पावर विल बी एबल टू कंट्रोल द नेटवर्क, ठीक है, तो इस तरह से ब्लॉकचेन अपनी डाटा की सिक्योरिटी इंश्योर करता है कि इतना ज्यादा ब्रॉडकास्ट कर देगा ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन को कि नोबडी विल बी एबल टू ट्रेस इट बैक, ठीक है, वापस उसको रिवर्ट नहीं कर पाएगा कोई भी, ठीक है, व्हेन इट बिकम्स पार्ट ऑफ पब्लिक लेजर इट इज देयर परमानेंटली। अच्छा, जैसे उसके बाद ट्रांजैक्शंस आर लिंक्ड टुगेदर इन एन इम्यूटेबल वे, ठीक है, वो जो मैंने जैसे कॉन्सेप्ट की बात की थी कि हर ट्रांजैक्शन जो है ब्लॉक का पार्ट बनी, ठीक है, और ब्लॉक जो है वो एक अपनी आइडेंटिटी एज ए ब्लॉक हैश रखता है और अपने से प्रीवियस ब्लॉक की इंफॉर्मेशन भी अपने पास रखता है कि मैं किस ब्लॉक के बाद इस ब्लॉकचेन में ऐड हुआ, ठीक है, तो ये जो इसकी जो इंटीग्रेशन ऑफ ब्लॉक्स है ये इम्यूटेबल है, ठीक है, तो इम्यूटेबल का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी बंदा अगर कोई ट्रांजैक्शन को चेंज करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो दैट ट्रांजैक्शन विल नॉट बी पार्ट ऑफ दैट स्पेसिफिक ब्लॉक जो कि उस टाइम पे हो रही थी, ठीक है, क्योंकि वो टाइम स्टैम्प गुजर गया होगा और वो ब्लॉक जो है वेरीफाई हो चुका होगा, ठीक है, तो वो एक काइंड ऑफ नए ब्लॉक में ट्रांजैक्शन जाएगी, तो जो ओरिजिनल ट्रांजैक्शन थी वो एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, उसका ट्रेस मौजूद रहेगा, और अगर एक दफा उस ट्रांजैक्शन पे कंसेंसस बिल्ड हो गया है कि यार ये ट्रांजैक्शन वैलिड है तो इट विल स्टे देयर फॉर लाइफ, नई ट्रांजैक्शन की वेरिफिकेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है, तो ये एक इम्यूटेबल वे ऑफ इंटीग्रेटिंग द ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन ये है, ठीक है, अच्छा, एडिशन ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शंस आर वैलिडेटेड एंड पैकेज्ड इनटू ब्लॉक्स व्हिच आर एडेड टू द चेन, ठीक है, यही मैंने अभी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया, ठीक है, अच्छा, ईच पार्टिसिपेंट दैट इज अ नोड कीप्स अ फुल ऑडिटेबल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, हर नोड, ठीक है, नोड इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ अ ब्लॉकचेन, जो मैंने आपको बताया कि इट इज अ कंप्यूटर सिस्टम व्हिच provides memory to the network to host a public ledger in specific hard disk or any data provider, ठीक है, तो ये कह लो कि मेन फ्लो ऑफ अ ट्रांजैक्शन है टू एक्चुअली मेक अ ट्रांजैक्शन पार्ट ऑफ एनी पब्लिक लेजर, ठीक है, so no need to trust intermediaries for record keeping. Sure. Q&A में जाएं. नहीं, आप इनसे कह दें कि अगर कोई क्वेश्चन If anybody wants to question, you can actually. Q&A में एक क्वेश्चन आया भी हुआ है और अहमद अनीस ने हैंड रेज किया है, अहमद अनीस से पूछ लेते हैं। मैं वहां से जाता हूं, जी बिल्कुल, मुराद हनीफ साहब का क्वेश्चन था कि इज द पब्लिक ट्रांजैक्शन अवेलेबल वाया ट्रांजैक्शन आईडी दैट गेट्स जनरेटेड व्हेन ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन वॉलेट टू अनदर, जी बिल्कुल, जैसे Ahmed Anis, जैसे हमने ये बात की थी do कि you have any question? We are taking questions right now, so you can unmute the mic and ask the question from the expert. Ahmed Anis and Mohammed Zishan. Yes, I have a question. Yes, go ahead. My question is that
as you said that there are plenty of nodes in the blockchain network. I know a bit theory about the Ahmed, blockchain, we are but I unable to cannot hear understand. you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you. I can hear you. Go ahead. Okay, I just asked that as there are plenty of nodes in a blockchain network, and as we know that all the nodes in that network are working, uh, continuously. So my question is that I'm confused in this from so long, that where is that network actually being hosted? For Mohammed example, Zishan, you in can ask Web3, your question. I'm not completed yet, I guess. My question Just is go that ahead. where does this network is hosted? Like how where is all our data being stored and stuff like that? I've Okay, so coming to the answer, basically, जो नोड्स का कॉन्सेप्ट है ना, नोड्स का कॉन्सेप्ट इज जस्ट लाइक यार मेरा सिस्टम है, ठीक है, आई एक्चुअली इंस्टॉल a wallet application, a desktop wallet application to my system, ठीक है, and it becomes a node and I start hosting the public ledger in my system. So I become a public node for that specific blockchain network. For example, जैसे इथीरियम एक पब्लिक नेटवर्क है, ठीक है, आई इंस्टॉल अ वॉलेट एप्लीकेशन, ठीक है, जो कि डेस्कटॉप वॉलेट होती है, ठीक है, डेस्कटॉप वॉलेट एक्चुअली कंटेन्स द नोड एज वेल, ठीक है, तो हमारे मेरे पास मेरे डेस्कटॉप वॉलेट में सारा का सारा नोड डाउनलोड हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, तो आई विल बिकम द होस्ट ऑफ द नोड एज वेल, ठीक है, सो नोड इज नथिंग बट अ होस्ट ऑफ अ पब्लिक लेजर, ठीक है, उसका मतलब कह लो कि एज सच और कोई मैकेनिज्म नहीं, इट्स जस्ट डेटा प्रोवाइडर फॉर दैट स्पेसिफिक ब्लॉकचेन नेटवर्क. Okay, and that node and all of those nodes become a network, right? Yes, all of the nodes connected together becomes a network, ठीक है, just like a concept of a P2P, ठीक है, जो हमारा मतलब एक क्लासिकल नेटवर्किंग Yeah. आर्किटेक्चर है, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी नोड, ठीक है, टू एक्चुअली propagate any transaction that is happening, ठीक है. All right. So there's one more question, just a short one. I heard that Ethereum blockchain पे हम application dApp एक बना देते हैं. So like Ethereum is a platform or is it a backend or what it is? मतलब like it is a platform there we can host our application or like what it is? Ethereum itself is a blockchain network itself, ठीक है, आप कह लो कि पहला जो ब्लॉकचेन नेटवर्क बना था ना वो बिटकॉइन था, ठीक है, बिटकॉइन वाज जस्ट यूटिलाइज्ड फॉर वैल्यू एक्सचेंज, ठीक है, बट देयर वाज नो इंफ्रास्ट्रक्चर टू एक्चुअली लेट पीपल बिल्ड एप्लीकेशन ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है, तो इथेरियम केम अप विद अ कांसेप्ट कि यार आई विल प्रोवाइड वैल्यू एक्सचेंज एज वेल इन द फॉर्म ऑफ इथेरियम कॉइन, but I'll also enable you to build your own applications or ecosystem or DApps ओवर आर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, तो अब आप फॉर एग्जांपल कोई भी अपनी डिस्ट्रीब्यूटेड ऐप बनाकर अपने इथेरियम नेटवर्क को लाइव करके उसको डिस्ट्रीब्यूटेडली एग्जीक्यूट कर सकते हैं थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी आई विल टच बेस इन लेटर इन द प्रेजेंटेशन एज वेल, ठीक है, तो Okay, thank you so much. सर यस. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसा कि अभी आपने कहा है कि पब्लिक लेजर है वो हर नोड पर जो है वो होस्टेड होगा, तो एक बड़े नेटवर्क के लिए उसका पब्लिक लेजर साइज भी तो ज़्यादा होता जाएगा, तो वो अब मेरे लैपटॉप में अगर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उस पूरे लेजर को स्टोर कर सकता है, तो फिर वो कैसे नोड होगा? मतलब यूजुअली मतलब कह लो जो अब जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स होते हैं ना, ये मतलब आपको नोड बनने में कोई इंसेंटिव नहीं देते, सो इट्स नॉट अ financial benefit to become a node of any blockchain network, ठीक है, it is just that कि for example आपने डाटा एनालिसिस करना है या आपने फॉर एग्जांपल कोई डाटा के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है, ठीक है, तो उस केस में आप अपने पास नोड होस्ट करो, वरना आपको जो डिफरेंट वॉलेट्स मिलते हैं टू यूज, दे एक्चुअली यूज देयर ओन नोड, ठीक है, तो आपको नोड इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट एनी ट्रांजैक्शन दैट यू वांट, बट ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जो है वो बेसिकली हर नोड पे स्टोर नहीं, तो ऑफ कोर्स नोड का जो आपका साइज है वो विद टाइम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, एज द ब्लॉक्स आर ग्रोइंग,
ठीक है, आपका मतलब नोट साइज भी इंक्रीज हो रहा है। तो ओनली रेलिवेंट people who want to build certain application or want to do certain level or certain number of transactions at any point of time do that, because of course for example अगर मैं बिटकॉइन के नोड की बात करूं, ठीक है, it is around 750 GB of data to actually, तो nobody would be willing to, अगर मतलब for example मैं as an end consumer बात करूं तो I won't be interested in doing that, right? तो इस केस में मतलब मैं मतलब नोड बनना प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन ऑलरेडी जो नोड्स इतने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं दुनिया में, सो आई वुड एक्चुअली यूटिलाइज देम टू डू एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आई वांट। सही है सर, यानी कि सर हम जो वॉलेट इंस्टॉल करेंगे लैपटॉप, वो हमारा लैपटॉप नोड नहीं बनेगा उसका डायरेक्ट। जो डेस्कटॉप वॉलेट्स होते हैं ना, उनके केस में आपका लैपटॉप मोस्टली नोड बनता है। फॉर एग्जांपल जो इथेरियम का कोर वॉलेट है, वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपका लैपटॉप नोड बनेगा, ठीक है। बिटकॉइन का जो कोर वॉलेट है वो आप डाउनलोड करेंगे तो आपका सिस्टम नोड बनेगा। इट विल डाउनलोड ऑल द ट्रांजैक्शन डेटा, लेकिन आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो यू रादर यूज अ पब्लिक वॉलेट टू एक्चुअली बी यूजिंग अ पब्लिक नोड एज वेल फॉर योर ट्रांजैक्शंस। और सर एक और क्वेश्चन है कि जैसे कि ये पब्लिक है ट्रांजैक्शन उसमें, तो क्या ये भी पता चल सकता है कि वो किसने ट्रांजैक्शन की है, उसकी भी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है। मतलब कह लें कि बहुत सारे मुल्कों ने इस चीज को इंश्योर कर लिया ऑलरेडी कि मतलब कि उसमें वो कंप्लीट केवाईसी प्रोसेस इंप्लीमेंट करें एंड टू एक्चुअली गेट टू नो हु डज ऑल द ट्रांजैक्शंस इन देयर कंट्री, ठीक है। इस प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सकता है एंड देयर इज ऑलरेडी मैकेनिज्म दैट आर इंप्लीमेंटेड इन द वर्ल्ड। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। अच्छा, मोहम्मद फैसल ने सवाल पूछा है जी कि व्हाट आर द रोल्स ऑफ माइनर्स, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हमने फॉर एग्जांपल बात की थी कि सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स में तो हमारा बैंकिंग चैनल्स या डिफरेंट फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस हमारे वैलिडेटिंग बॉडीज होते हैं फॉर द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग, ठीक है। लेकिन जब हमने बात की, जब हमने सेंट्रलाइज्ड बॉडीज को बीच में से निकाल दिया, ठीक है, तो अब हमारे पास कह लें कि वेरीफाइंग बॉडीज नहीं रही, ठीक है। तो देयर नीड्स टू बी समथिंग टू एक्चुअली एंश्योर दैट द ट्रांजैक्शंस आर वैलिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज सेंडिंग मनी, we need to make sure that he has the specific amount of money and do all the relevant mathematical calculations कि यार एक बंदे से पैसे कटने हैं, दूसरे के पास ऐड होने हैं and things like that। तो उसके लिए कंसेंसस एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है ब्लॉकचेन में, ठीक है। वो जो मतलब अभी मैं कंपोनेंट्स में एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। तो उसमें कंसेंसस में ये होता है कि उसमें माइनर्स का रोल आता है कि दे आर द वेरीफाइंग बॉडीज, ठीक है। दे आर हाई स्पेसिफिकेशन सिस्टम्स which are there to actually validate and verify the transactions that are happening in any specific interval of time, ठीक है। माइनर्स का रोल ये होता है, ओके। हाय, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे अभी जिक्र किया कि मल्टीपल नोड्स होती हैं, तो जब आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो वैलिडेट जब वेरीफाई हो जाती है यूजिंग एनी कंसेंसस एल्गोरिथम, तो जो आपकी जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है, लेट्स सपोज ए, जो आपने वैलिडेट की है किसी नोड ने, तो ये बाकी नोड्स में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होती है? ये क्या कंसेंसस एल्गोरिथम का पार्ट होता है या फिर कोई सेपरेट कंपोनेंट होता है ब्लॉकचेन का जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि सिंगल स्टेट ऑफ नेटवर्क ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो अक्रॉस जो ओवर द नेटवर्क? बिल्कुल, ब्रॉडकास्टिंग इज एक्चुअली पार्ट ऑफ कंसेंसस एल्गोरिथम एज वेल, ठीक है। मतलब क्योंकि उसने उस प्रोसेस के थ्रू जब वेरीफाई होगा, देन इट नीड्स टू बी ब्रॉडकास्टेड टू द नेटवर्क। सो बेसिकली वेरिफिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, पार्ट ऑफ द कंसेंसस एल्गोरिथम प्रोसेस। कंसेंसस एल्गोरिथम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये ब्रॉडकास्टिंग भी करे along with verification। जी बिल्कुल। थैंक यू। सईद अहमद। जी सईद अहमद, आप अपना क्वेश्चन पूछें। अच्छा, सईद अहमद, कैन यू आस्क योर अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन?
Acha, I have a question from Mohsen Mahmood as well. Which language is mostly used for blockchain? It is easy or complex? So basically multiple languages use की जाती हैं blockchain की programming के लिए, but the most common language that is being used is Solidity, and it was introduced by Ethereum itself. ठीक है, अब जितने भी नेटवर्क्स जो हैं वो इथीरियम के ऊपर बिल्ड होते हैं, उनमें सारों में प्रोग्रामिंग जो है वो सॉलिडिटी में होती है. ठीक है, और सॉलिडिटी भी आप कह लें कि वो ब्लॉकचेन लेवल प्रोग्रामिंग के लिए यूज होती है. ठीक है, एप्लीकेशन लेवल डेवलपमेंट आप किसी भी एप्लीकेशन लेवल लैंग्वेज में लाइक MERN stack, mean stack, Python, whatever language you prefer, application level development आप उसमें कर सकते हैं. एंड framework integration is possible through Web3 architecture. ठीक है, Web3 पे आप अगर थोड़ी सर्चिंग करेंगे तो आपको मतलब ये अंदाजा होगा कि मतलब it's all integratable with all the implementation frameworks. Session continue. Okay. अच्छा, थोड़ा सा कंपोनेंट्स के ऊपर आ जाते हैं. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो मतलब कह लें जो हमने बात की कि यार हमारा डाटा जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर है इन केस ऑफ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर. ठीक है, तो उसकी वजह हमारा क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिथम्स हैं जो कि मतलब हर लेवल पे ऑफ द ट्रांजैक्शन लाइफ साइकिल, उसके कंसेंसस एल्गोरिथम का लाइफ साइकिल, उसका स्टोरेज का लाइफ साइकिल. ठीक है, उसमें हर लेवल पे डिफरेंट क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स हमारे इम्प्लीमेंट हुए हुए हैं. ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल वन वे हैश फंक्शंस. ठीक है, मतलब कि वन वे हैश फंक्शंस के हमारे पास सारी जो ट्रांजैक्शन है और जो उनकी हैशेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो वन वे के तौर पे वन वे हैश जनरेट होता है. इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. ठीक है, तो वो एक कह लो कि एक इनिशियल हमारा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है. ठीक है, मर्कल ट्रीज का एल्गोरिथम है. फिर आपका पब्लिक की का इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा, कि हमारे जो पब्लिक की जो जनरेशन है, ठीक है, उसका एक पूरा क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म है कि nobody would be able to generate a public key once it is generated. ठीक है, it's not till the time of quantum computers. I think this is physically not possible. अच्छा, दूसरा कंपोनेंट मतलब जो मेजर ब्लॉकचेन में है वो है क्या, इट्स अ P2P नेटवर्क. ठीक है, एंड डाटा इज शेयर्ड इन P2P मैनर, जस्ट लाइक जो क्लासिकल हमारा नेटवर्किंग मैकेनिज्म था. ठीक है, वैलिडिटी रूल्स कि हमारे पास किस बेसिस पे कॉमन सेट ऑफ रूल्स ऑफ द नेटवर्क, दैट इज व्हाट ट्रांजैक्शंस आर कंसीडर्ड वैलिड, हाउ लेजर इज अपडेटेड. ठीक है, फिर हमारे वैलिडिटी रूल्स हमारे शुरू से हमारे पास डिफाइंड होते हैं जब भी हमारे पास कोई ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर इनिशिएट होता है. ठीक है, शुरू से उसके वैलिडिटी रूल्स इन द फॉर्म ऑफ कंसेंसस एल्गोरिथम डिफाइन होते हैं कि ट्रांजैक्शन का पूरा वेरिफिकेशन का लाइफ साइकिल क्या होगा. ठीक है, किस तरह से वो किस प्रोसीजर के थ्रू पब्लिक लेजर्स पे अपडेट होगी. ठीक है, फिर आपका लेजर जो कि आपके मतलब सारे के सारे ट्रांजैक्शंस को होस्ट कर रहा है. ठीक है, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इटसेल्फ. ठीक है, फिर कंसेंसस मैकेनिज्म. ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा मैंने मतलब इसको इनिशियली भी बताया था, लेकिन इसको थोड़ा सा मजीद इन डिटेल बताने के लिए कि just like we actually remove the centralized body to verify all the transactions that are happening in a network, हमें कुछ ना कुछ ऑटोमेटेड मैकेनिज्म इसके अंदर लाना था. ठीक है, so Satoshi came up with this idea कि I'll build a consensus algorithm. consensus जैसे कि अपने नाम से बता रहा है कि it's a consensus being built on by multiple people जो कि मतलब इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो वैलिड है. so it actually ensures कि हमें मल्टीपल लोगों ने इस पे कंफर्मेशन दी है और उन मल्टीपल लोगों का कंसेंसस बिल्ड हुआ है टू एक्चुअली वेरीफाई अ ट्रांजैक्शन कि इट्स वैलिड और इनवैलिड ट्रांजैक्शन. ठीक है, वैलिड के केस में इट विल बी अपडेटेड टू द पब्लिक लेजर. ठीक है, इनवैलिड के केस में इट विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, तो ये कंसेंसस का मेन कॉन्सेप्ट है कि हम और ये मल्टीपल तरह के कंसेंसस अभी दुनिया में बिल्ड ऑलरेडी हो चुके हैं. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ देम यू कैन से, लेकिन मेजर जो है दुनिया में वो 3 तरह के कंसेंसस एल्गोरिथम्स सबसे ज्यादा यूज होते हैं. ठीक है, वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ वर्क. ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क इज अ कॉन्सेप्ट इन विच, जैसे हमारा क्वेश्चन भी था कि उसमें माइनर्स आए थे. ठीक है, माइनर्स आर हाई स्पेसिफिकेशन मशीन्स दैट आर इंस्टॉल्ड टू एक्चुअली सॉल्व एनी मैथमेटिकल ट्रांजैक्शन जो कि मतलब ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है. ठीक है, या नेटवर्क से रिलेटेड है. ठीक है,
वो मतलब उसको सॉल्व करके ट्रांजैक्शन वेरीफाई करके एंड इट ब्रॉडकास्टेड टू द नेटवर्क, ठीक है। प्रूफ ऑफ वर्क में जैसे वर्क का जैसे मतलब कॉन्सेप्ट है वो ये कि मतलब देयर इज सम physical activity involved, there are some machinery involved, there is some physical components that are being working to actually verify that process. That is why it is called proof of work, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो कॉन्सेप्ट जो कि मतलब बिल्कुल मतलब कह लो रिसेंटली ही लाइव हुआ वो था प्रूफ ऑफ स्टेक का, ठीक है। प्रूफ ऑफ स्टेक का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मतलब जिसमें इसमें वैलिडेशन जो है वो खास तरह के लोग कर सकते हैं, ठीक है, विच एक्चुअली होल्ड अ स्टेक इन द नेटवर्क, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई नेटवर्क एक स्पेसिफिक वैल्यू रखता है उसका कॉइन, ठीक है, उस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कॉइन वो जो लोग होल्ड करते हैं वो ही उस नेटवर्क में आपका कह लें कि वेरीफाइंग बॉडी का रोल अदा कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज मेनली द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूफ ऑफ स्टेक, ठीक है। फॉर एग्जांपल एथेरियम में हमारा 200 ईथर का हमारा एक रूल है स्टेकिंग के लिए, ठीक है, कि आप वैलिडेटर का बनना चाहते हैं तो 200 ईथ आप स्टेक करेंगे, ठीक है, देन यू एक्चुअली बिकम पार्ट ऑफ द स्टेकिंग ग्रुप, ठीक है। एंड बेस्ड ऑन दैट, अच्छा, और कंसेंसस, इन दोनों कंसेंसस एल्गोरिथम में जो भी किसी भी ब्लॉक को वेरीफाई करता है ही गेट्स रिवॉर्डेड, ठीक है, बाय अ सर्टेन अमाउंट जो कि मतलब उस नेटवर्क में डिफाइंड है, ठीक है। एवरी वैलिडेटर गेट्स रिवॉर्डेड फॉर ऑल द ब्लॉक्स दैट दे वेरीफाई, ठीक है। तीसरा जो मेन एल्गोरिथम जो मोस्ट ऑफ द बिजनेस केसेस में यूज होता है वो है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। जैसे मैंने दूसरे दोनों बताया प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक, दे आर यूज्ड फॉर पब्लिक ब्लॉकचेन्स, ठीक है, जिसमें मतलब पब्लिक लेजर हर एक के पास अवेलेबल होता है, हर कोई अपने पास सेटअप कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो तीसरा है प्रूफ ऑफ अथॉरिटी, दैट इज यूज्ड फॉर डिफरेंट बिजनेस यूज केसेस। उन दोनों में एक ट्रांजैक्शनल फीस इन्वॉल्व है जो कि मतलब किसी भी मतलब जो भी बंदा जो भी वैलिडेटर उसको वेरीफाई कर रहा है उसको एक फीस पे हो रही, ठीक है। जो बिजनेस यूज केसेस होते हैं उसमें फीस पे करना की बिजनेस फिजिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक सप्लाई चेन को ऑटोमेट किया है, ठीक है, उस केस में हमें ट्रांजैक्शन पे करना किसी भी स्टेक होल्डर मूवमेंट की, ठीक है, वो एक बिजनेस फिजिबल नहीं है कि उसकी फीस पे की जाए। तो उसके लिए IBM came up with the concept of proof of authority in which there is a defined consensus based authority, ठीक है, जो कि मतलब वेरीफाइंग बॉडी होती है किसी भी ट्रांजैक्शंस की, ठीक है। तो उसमें वो मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया था कि बेस्ड ऑन व्हिच क्राइटेरिया द ट्रांजैक्शंस विल बी वेरीफाइड एंड रिटन ऑन द लेजर, ठीक है। ये तीन मेजर कंसेंसस एल्गोरिथम है जो कि दुनिया में आजकल यूज हो रहे हैं। अच्छा, सो बेसिकली उसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करते हुए चीज़ों को कि ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स को, कि हमारे पास लेजर होता है व्हिच इज काइंड ऑफ होस्टिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस, हमारे पास कंसेंसस एल्गोरिथम्स होते हैं जो कि मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सॉरी, आफ्टर लेजर वी हैव स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वेयर वी एक्चुअली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि मतलब आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जानने वाली चीज है, इट एक्चुअली इम्प्लीमेंट्स बिजनेस लॉजिक ओवर अ डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क, ठीक है। हमारे पास स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हर तरह की बिजनेस लॉजिक जो हम चाहते हैं कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से एग्जीक्यूट हो, ठीक है, उसको हम लेके चलते हैं, उसको उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं, ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करते हैं, सो दैट एवरी बिजनेस लॉजिक इज एग्जीक्यूटेड एज पर द डिफाइंड क्राइटेरिया जो कि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में किया है, ठीक है, ठीक है। मोस्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन इन सॉलिडरी लैंग्वेज, सो I would really recommend you to actually learn that, and if any help is required, we are always available to guide you and support you in the learning process, ठीक है। फिर हमारा कंसेंसस एल्गोरिथम, कंसेंसस नेटवर्क के हमारा कि हर ट्रांजैक्शन जो भी मतलब नेटवर्क पे हो रही होगी उसमें कंसेंसस बिल्ड होगा, ठीक है। आफ्टर द कंसेंसस इट विल बी मेड पार्ट ऑफ द पब्लिक लेजर, ठीक है। अच्छा, मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट है। मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट ये है कि everybody that is part of the network, every individual, every person will actually need an identity, ठीक है। वो identity हमारी public key होती है, ठीक है, that you are always identified by your public key in the public network, ठीक है। everybody will be able to send you anything or assign you anything using your public address जो कि आपको wallet setup के टाइम पर assign हुआ था या generate हुआ था। अच्छा,
इवेंट्स में मतलब कह लो कि आपको मतलब आपने कोई भी फॉर एग्जांपल किसी भी एक स्पेसिफिक एक्शन पर आपने कोई चीज एग्जीक्यूट करनी है, उसको हम ब्लॉकचेन की ज़बान में इवेंट्स कहते हैं, ठीक है। हम जो बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं उसमें उन इवेंट्स को ही लिसन करके, ठीक है, अपनी बिजनेस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने किसी ट्रांजैक्शन को लिसन करना था कि जब ये फॉर एग्जांपल इस स्पेसिफिक पॉइंट पे पहुंचे, ठीक है, तो हमें पता चल जाए एंड वी एक्चुअली राइट अ बिजनेस लॉजिक ओवर इट टू रिप्रेजेंट एनी इंटरफेस जो भी मतलब हमने किसी भी एप्लीकेशन में करना था, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एबिलिटी टू क्रिएट, चेंज एंड मॉनिटर ब्लॉकचेन कंपोनेंट्स, ठीक है। सिस्टम मैनेजमेंट में हमारे पास आप कह लें कि एक तरह से वो सारा डाटा जो कि ब्लॉकचेन में जनरेट हो रहा है, ठीक है, दैट इज अवेलेबल टू बी यूज्ड इन एनी एट एनी एप्लीकेशन लेवल, इसको हम सिस्टम मैनेजमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास वॉलेट है, ठीक है। वॉलेट हैज टू मेजर कंपोनेंट्स, इट हैज अ पब्लिक की एंड इट हैज अ प्राइवेट की, ठीक है। पब्लिक की वो एड्रेस है जो कि मतलब जिससे दुनिया आपको जानती है, ठीक है। प्राइवेट की आपका वो पासवर्ड है जिसके थ्रू आप अपना वॉलेट अनलॉक करते हैं एंड डू एनी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दैट इज योर एन्क्रिप्टेड एप्लीकेशन, यू शुड नेवर पास इट ऑन टू एनीवन, ठीक है। दैट इज योर पासवर्ड यू कैन से, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा सिस्टम इंटीग्रेशन आया था जिसमें हम सारे के सारे जो हमारे कंपोनेंट्स हैं ब्लॉकचेन के उसको अपनी बिजनेस एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करके जो भी हमारा यूज केस है वो इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है। देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन ओवरऑल, पब्लिक ब्लॉकचेन एंड प्राइवेट ब्लॉकचेन, ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन जैसे कि नाम से थोड़ा सा वाज़ेह है कि there are public ledgers for it. Everybody that can become part of the network can actually host a public ledger, ठीक है। It actually has all the information of the transaction that is happening in that network, ठीक है। public blockchain में access to the blockchain is free, anyone can read with and write information, ठीक है। वही मैंने कहा कि आप बस नोड अपने पास इंस्टॉल करें एंड यू बिकम पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क, ठीक है। वैलिडेटर्स अननोन एंड कैन बी एनीवन एज वेल, ठीक है। जो हमारे वैलिडेटर्स हैं जो हमने कैसे कंसेंसस में बात की, ठीक है, वो भी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। यू कैन बिकम पार्ट ऑफ इट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क में हमें माइनिंग चाहिए, ठीक है, तो हमें फॉर एग्जांपल हाई स्पेसिफिकेशन सिस्टम्स खरीदने पड़ेंगे और वो सेटअप करना पड़ेगा, नेटवर्क से कनेक्ट करने पड़ेंगे एंड इंश्योर करना पड़ेगा कि हमारे पास इतनी पावर है टू एक्चुअली बिकम अ माइनर और अ वैलिडेटिंग बॉडी, ठीक है। इंसेंटिव मैकेनिज्म यूज टू वैलिडेट ट्रांजैक्शंस, जैसे मैंने बात की कि हमारा कंसेंसस जो पब्लिक ब्लॉकचेन्स हैं उनमें जो हमारे वैलिडेटर्स होते हैं दे आर इंसेंटिवाइज्ड फॉर ऑल द वैलिडेशंस दे डू, जो कि मतलब किसी ब्लॉक को वेरीफाई करते हैं उसको स्पेसिफिक रिवॉर्ड होता है जो कि उनको मिल रहा होता है, ठीक है। ये मतलब कह रहा है पब्लिक यूज केसेस में ये चीज यूज होती है, ठीक है। फिर हमारे पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसमें मतलब हमें डिफरेंट बिजनेस केसेस इंप्लीमेंट करने हैं, ठीक है। उसमें मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इंडस्ट्री वाले ये नहीं चाहते कि उनका डाटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल हो, सो दे गिव अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइवेट ब्लॉकचेन वेयर nodes are hosted within a specific what you can say vicinity, ठीक है। उसमें हर किसी को नोड बनने की इजाजत नहीं होती, हर किसी को वैलिडेटिंग बॉडी बनने की इजाजत नहीं होती, ओनली रेलेवेंट पीपल जो कि मतलब इनिशियली पार्ट बने नेटवर्क का वही थ्रू आउट द लाइफ टाइम पार्ट रहेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है प्राइवेट ब्लॉकचेन का जब हम किसी क्लोज बिजनेस यूज केस में अपना ब्लॉकचेन नेटवर्क को आर्किटेक्चर को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें वैलिडेटर्स भी नोन होते हैं, उनकी रेपुटेशन अपनी स्टेक पे होती है क्योंकि एवरीबॉडी नोज हु दे आर, ठीक है। पब्लिक ब्लॉकचेन के केस में हमें नहीं पता था वैलिडेटर्स कौन है, ठीक है, लेकिन इस केस में दे आर नोन बिकॉज दे आर अथॉरिटी, ठीक है। तो उनकी रेपुटेशन ऑनलाइन होती है कि भाई आपने इस चीज को वेरीफाई किया था तो वाई, ठीक है। दिस इज द एसेंस ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट अलाइंड स्टेक होल्डर्स, ठीक है। इससे मतलब कोई एक ऐसा बिजनेस केस यूज केस एग्जीक्यूट हो रहा होता है, ठीक है, जिसे मतलब कह लो कि उस प्रोसेस का चलना वैलिडेटर्स के लिए ज्यादा फायदेमंद होता है एज कंपेयर टू गेटिंग अ रिवॉर्ड ऑफ एनी ट्रांजैक्शन दैट इज हैपनिंग, ठीक है। सो बोथ ऑफ दीज यूज केसेस आर इंप्लीमेंटेड इन डिफरेंट सिनेरियोस। अच्छा, generating value across your business ecosystem is increased transparency,
अक्रॉस योर इंडस्ट्री इकोसिस्टम, ठीक है। अभी मतलब कह लें कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी बिजनेस केस में इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, और हम इंश्योर करना चाह रहे हैं कि हमारी क्वालिटी ऑफ आवर प्रोडक्ट इज रियली गुड, ठीक है, तो हम मतलब कह लो कि अपना लेजर जो है वो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को एक्सपोज कर देंगे सो दैट दे कैन एक्चुअली सी कि किस लाइफ साइकिल से उनका प्रोडक्ट होके उन तक पहुंचा है, ठीक है। उसमें किसी को कोई डाटा पंक्चर नहीं कर सकता, कोई डाटा को मिसयूज नहीं कर सकता, ओनली रेलेवेंट पीपल विल बी एबल टू सी इट, ठीक है, जिसकी बेस पर आपकी सेल बढ़ सकती है, कस्टमर लॉयल्टी बढ़ सकती है, ठीक है। अच्छा, सेकंड इज एलिमिनेट मैनुअल रिकंसिलिएशन, ठीक है, देयर इज नो मैनुअल रिकंसिलिएशन इन्वॉल्वड इन एनी ऑफ दीज टाइप ऑफ ब्लॉकचेन्स, ठीक है, ऑल द प्रोसेस इज ऑटोमेटेड थ्रू कंसेंसस एल्गोरिथम, ठीक है, कि ट्रांजैक्शन किस लाइफ साइकिल से होकर आई एंड वेरीफाई होकर लेजर का हिस्सा बनी, ठीक है। ऑटोमेट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, ऑडिट्स एंड रिपोर्टिंग। सो तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस केस में, वो ऑडिटिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन जो कि मतलब लेजर में स्टोर हुई, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास एक ट्रांजैक्शन का पूरा लाइफ साइकिल मौजूद है फ्रॉम एंड टू एंड, ठीक है, तो हमारा ऑडिटिंग प्रोसेस इज मेड सीमलेस, ठीक है। हमें कहीं मतलब हम किसी भी तरह की डिस्क्रिपेंसीज में नहीं फंसेंगे थ्रू आउट द ऑडिटिंग प्रोसेस एज वेल, ठीक है। तो टू अश्योर दैट we can implement blockchain systems into our business process to assure that we have the auditing and reporting properly for all the data that is present for that specific business use case, ठीक है। leverage one single immutable version of the truth accessible at the same time to all authorized stakeholders। अच्छा, अब ये बात जो है कि leverage one single immutable version of truth, इसका क्या मतलब है कि अब जब फॉर एग्जांपल हम लेजर की बात कर रहे थे, एक लेजर में हमारी सारी ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन स्टोर है, ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि किसी के पास कोई रेलेवेंट ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन ना हो और वो कोई ट्रांजैक्शन कर दे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरा सिस्टम एक नोड है किसी भी ब्लॉकचेन नेटवर्क का, ठीक है, और आप जितने भी लोग बैठे हैं आप सब जो हैं आप सब भी एक नोड है, ठीक है। तो हमारे पास एक कोई भी सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं है कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब हर बंदा जो है वो मेरे नोड से कनेक्ट होकर कोई भी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है या मतलब उसको नेटवर्क पे प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एवरीबॉडी इज अ नोड, ठीक है, लेकिन हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कॉमन है, ठीक है। वही नोड वही लेजर मेरे पास स्टोर्ड है, वही लेजर आपके पास स्टोर्ड है, ठीक है। अच्छा, एक जो एसेंस है उस नोड होस्टिंग का या लेजर होस्टिंग का वो ये कि जब तक अगर फॉर एग्जांपल जिस भी नोड से मैं इंटरेक्ट कर रहा हूं अपने वॉलेट के थ्रू फॉर डूइंग एनी ट्रांजैक्शन, ठीक है, मैं तब तक वो ट्रांजैक्शन नहीं कर पाऊंगा जब तक मेरे लेजर के पास लेटेस्ट ब्लॉक का डाटा नहीं है, ठीक है। अगर मेरे नोड के पास लेटेस्ट ब्लॉक का डाटा नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू मेक माई ट्रांजैक्शन पार्ट ऑफ एनी ब्लॉक। उसका एसेंस क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे किसी ने मेरे वॉलेट के थ्रू कोई ट्रांजैक्शन कर दी है और वो ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट भी हो गई है और मेरा लेजर ने उस ब्लॉक को अभी तक सिंक नहीं किया, ठीक है, तो मेरे पास मेरा जो पुराना बैलेंस था वो शो हो रहा होगा, ठीक है, और जो मेरा पुराना बैलेंस मेरे पास शो हो रहा है वो मैं स्पेंड कर सकता हूं। तो इसको जो मैं डबल स्पेंडिंग की मैं बात कर रहा था, डबल स्पेंडिंग को ब्लॉकचेन ने कैसे रोका, वो ये कि जब तक मेरे पास पूरा डाटा सिंक नहीं हो जाएगा आई विल नॉट बी एबल टू डू द ट्रांजैक्शन, ठीक है। सो दिस इज द एसेंस ऑफ सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रूथ, ठीक है, कि यार सारे नोड्स का सिंक होना लाजमी है टू इंश्योर कि हर ट्रांजैक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो सके हर पॉइंट से, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज डाटा एक्यूरेसी एंड एनेबल रियल टाइम एनालिटिक्स, ठीक है, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हमारा डाटा सिंक हो रहा है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर रियल टाइम एनालिटिकल एप्लीकेशंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, छठा जो मतलब कह लो वैल्यू है इसकी वो ये कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल किसी भी सप्लाई चेन नेटवर्क में या किसी भी अदर बिजनेस यूज के मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टेक होल्डर्स एक दूसरे से अपना डाटा जो प्राइवेट बिजनेस डाटा है वो शेयर करना नहीं चाहते।
हम उनको उनकी साइलोड एनवायरनमेंट में एक आर्किटेक्चर से कनेक्ट कर सकते हैं टू प्रोवाइड देम सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑफ द डाटा जो कि उनको उनके लिए रेलेवेंट है, ठीक है, और उनके पास उसके एक्सेस राइट्स है, ठीक है। बट डाटा जो है वो एक कंबाइंड कंसेंसस फॉर्म में स्टोर होगा नेटवर्क के ऊपर, ठीक है, उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। एवरीबडी कैन यूज देयर ओन इंटरफेस, जो भी मतलब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, हमारे प्रोक्योरमेंट वाले इन्वॉल्व हैं, मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन्वॉल्व हैं, रिटेलर्स इन्वॉल्व हैं, किसी भी सप्लाई चेन प्रोसेस में हर कोई अपने इंटरफेस से डाटा को एक्सेस करके उस पर अपने ऑपरेशंस कर सकता है, ठीक है। लेकिन डाटा की स्टोरेज का मैकेनिज्म, उसके कंसिस्टेंट होने का मैकेनिज्म वो ब्लॉकचेन इंश्योर करेगा, ठीक है, टू एक्चुअली एनेबल एवरीवन टू यूज द एप्लीकेशन टू इट्स बेस्ट पोटेंशियल। अच्छा, अब जैसे आपको बताऊं कि करंट स्टेट में हमारा हर स्टेक होल्डर जो है, अभी हमारे, मैं आपको दोनों स्टेट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, जो मैंने अभी फॉर एग्जांपल अभी टुकड़ों में एक्सप्लेन की, उसको मतलब एक विजुअल फॉर्म में, कि बिजनेस ऑपरेशंस राइट नाउ आर रियली कॉम्प्लेक्स बिकॉज एवरी स्टेक होल्डर्स इज इंटरेक्टिंग विद एवरीबॉडी, ताकि उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो सके अक्रॉस द बोर्ड, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हमारी लो लेवल ऑफ सिस्टम इंटीग्रेशन है, कोई ERP यूज कर रहा है, कोई POS यूज कर रहा है, ठीक है। सो बिजनेस प्रोसेसेस आर बीइंग डन इन साइलोड एनवायरनमेंट्स, ठीक है। हर एक का डाटा स्टोरेज मैकेनिज्म अपना अपना है, डाटा के मैनेजमेंट का मैकेनिज्म अपना अपना है, ठीक है। तो ये हमारा करंट बिजनेस ऑपरेशंस का फ्लो है, ठीक है, ठीक है। और बहुत ज्यादा जगह पे मैनुअल प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं टू एक्चुअली इनिशिएट और वेरीफाई कि यार क्या हमारे जो ये ट्रांजैक्शन थी इस स्पेसिफिक कंसेंसस हो के आई है या नहीं आई, ठीक है। जबकि जो ब्लॉकचेन जो यूज केस आपको जो सोल्यूशन आपको देता है वो ये कि हर कोई अपनी डोमेन में काम करे, लेकिन जो डाटा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ब्लॉकचेन दे, एंड दैट विल बी इंटीग्रेटेड टू ऑल द रेलेवेंट एप्लीकेशंस जो कि हर स्टेक होल्डर यूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर शेयर्ड बिटवीन स्टेक होल्डर्स एंड enabling simultaneous work in a trusted and temper resistant environment, ठीक है। तो मतलब कह लो कि हमारा क्योंकि वन सोर्स ऑफ ट्रूथ है फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो किसी के पास भी एक्सेस नहीं है कि वो डाटा को मिसयूज कर सके या डिफरेंट क्वालिटी चेक्स को बाईपास करके अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर सके, क्योंकि हर प्रोडक्ट की रेलेवेंट ट्रांजैक्शन जो है वो हम ब्लॉकचेन में लॉक कर रहे हैं, ठीक है, और उस ट्रांजैक्शन का कंसेंसस जो है वो थ्रू अथॉरिटीज बिल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा कह लो कि फ्यूचर स्टेट होगी, क्योंकि मतलब बहुत सारे मतलब कोका कोला ने आपका मतलब कह लें कि GSK ने, दे हैव इम्प्लीमेंटेड मल्टीपल बिजनेस केसेस इन ब्लॉकचेन टू एंश्योर और ऑटोमेट सर्टेन बिजनेस केसेस दैट दे आर यूटिलाइजिंग एट द मोमेंट। अच्छा, ये डिफरेंट एडवांटेजेस हैं ब्लॉकचेन के, कि ट्रेसेबिलिटी है। ट्रेसेबिलिटी मतलब कि हर ट्रांजैक्शन की एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम पता कर सकते हैं कि इसकी करंट स्टेट क्या है, ठीक है, इज इट वेरीफाइड, कंफर्म्ड, इनवैलिड, व्हाटएवर इट इज, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास हर ट्रांजैक्शन की ट्रेसेबिलिटी मौजूद है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी है, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि जो पास्ट ट्रांजैक्शंस हुई हैं, ठीक है, इफ आई वांट टू गेट रेलेवेंट डाटा ऑफ एनी स्पेसिफिक स्टेक होल्डर इन्वॉल्व, तो मैं उनका डाटा जो है वो गेट कर सकता हूं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। ऑडिटेबिलिटी, जैसे मैंने मेंशन किया कि जैसे हम एक डाटा को एक स्पेसिफिक डिफाइंड स्टैंडर्ड के थ्रू स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, हर ट्रांजैक्शन को एक डिफाइंड स्टैंडर्ड के थ्रू स्टोर कर रहे हैं, सो वी कैन डू ऑडिट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ताकि मतलब कह लो कि वी आर इन अ सिक्योर एंड कंसिस्टेंट केस एट एनी टाइम, ठीक है। Security is the main advantage as well as a strength of a blockchain network, ठीक है। Once the data gets written on the network, it assures that data is secured and it cannot be manipulated throughout the process of the transaction lifecycle as well as public ledger hosting, ठीक है। It's scalable as well, कि मतलब network can grow as the nodes are growing, as the number of wallets are growing, ठीक है। It has no restriction कि network कितना scalable है, ठीक है। Billions of people can connect to any network at any point of time, ठीक।
एफिशिएंसी कैसे आई कि भाई हमने एक ब्लॉक टाइम फॉर एग्जांपल हमें डिफाइन किया था, हमें ये पता है कि उस ब्लॉक टाइम में हर ट्रांजैक्शन जो है वो वेरीफाई होकर मेरे फंड्स या कोई भी मेरी जो ट्रांजैक्शन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो हमें कह लो कि जो हमें सेंट्रलाइज बॉडीज से आज़ादी मिल रही थी, वो हमें एफिशिएंसी हमें इस तरह से अचीव हुई कि एवरी ट्रांजैक्शन इज कैन बी डन इन रियल टाइम। अच्छा, ये मतलब मैंने इसको मतलब कह लो बेसिक को मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। प्राइवेट और पब्लिक को तो मैंने किया है। हाइब्रिड एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो कि मतलब कह लें कि बहुत सारे यूज केसेस हैं जो मतलब सिर्फ ब्लॉकचेन से सॉल्व नहीं होते, ठीक है। सो वी हैव टू एक्चुअली कंबाइन बोथ द आर्किटेक्चर्स इन अ वे कि मतलब हम रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को कुछ इंफॉर्मेशन शो करवा सकें पब्लिक लेजर की, ठीक है, और कुछ हम हाइड कर सकें, ठीक है, फॉर बिजनेस सीक्रेट पर्पसेस एज वेल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कोई ऐसा बिजनेस केस इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें कुछ इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है टू रेलेवेंट बॉडीज या रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स, कुछ को हमने फॉर एग्जांपल हमने प्रोडक्ट क्वालिटी को हमने एक्सपोज करना है टू द वर्ल्ड, तो उसमें हम पब्लिक लेजर में इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जो फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो कि मतलब कह लो हर किसी को शेयर नहीं करना चाहते, ठीक है, वो आप प्राइवेट ब्लॉकचेन नेटवर्क्स में एक ही सिस्टम के अंदर स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, नाउ वी कम टू ब्लॉकचेन यूज केसेस, ठीक है। These are few of the use cases that we implemented in past, ठीक है। I'll actually explain 3 of them so that थोड़ा सा आइडिया हो सके कि how did they work, ठीक है। 3 हमारे मेजर प्रोजेक्ट्स थे जो मतलब हमने डिलीवर किया। I want to go over a little bit to actually show कि कैसे हमने इन बिजनेस प्रोसेसेस को थ्रू ब्लॉकचेन ऑटोमेट किया, ठीक है। अच्छा, MedPayRx was one of our project जिसमें हमने मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को थ्रू टोकन मैनेज किया और उसको जितने भी मेडिकल सप्लाई चेन में जितने लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, हमने सबको रेलेवेंट इंटरफेसेस के थ्रू इस मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को मैनेज करवाया, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल डॉक्टर जनरेट्स अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर एनी पेशेंट, ठीक है, एंड ऑल द रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन दैट स्पेसिफिक टोकन, ठीक है। अच्छा, ये जो टोकन था हमारा दैट वाज मेनली एन NFT, ठीक है। NFT का कॉन्सेप्ट का आपको शायद आइडिया हो, काफी इट्स अ ट्रेंडिंग वर्ड, ठीक है। इट्स काइंड ऑफ केयर, एक अगर फॉर एग्जांपल क्रिप्टो करेंसीज में हमारा कॉइन होता है व्हिच एक्चुअली हैज अ वैल्यू, ठीक है, बट दैट कॉइन डजंट स्टोर एनी डाटा, ठीक है। सो ब्लॉकचेन केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ NFT, ठीक है, जहां पर हमारे पास एक टोकन के अंदर किसी भी चीज से रेलेवेंट इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। सो दैट NFT कैन रिप्रेजेंट एनी स्पेसिफिक फिजिकल एसेट और कमोडिटी, ठीक है, एंड कैन बी एक्सचेंज्ड एज अ वैल्यू एज वेल, ठीक है। तो हमने NFT को स्मार्ट प्रिस्क्रिप्शन में इंप्लीमेंट करके सारी इंफॉर्मेशन उस NFT के अंदर स्टोर करके उसको पास ऑन किया थ्रू आउट द मेडिकल सप्लाई चेन साइकिल, ठीक है। तो काइंड ऑफ उसका बिजनेस यूज किया जाता था कि पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से, ठीक है, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को इशू की, ठीक है, विच इज अ टोकन, ठीक है। अब जितने भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, एवरीबडी हैज अ वॉलेट, ठीक है, दे कैन होल्ड दैट स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन टोकन जो कि उनके लिए जनरेट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ली डॉक्टर से, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन इशू किया, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन इज पास टू द इंश्योरेंस बॉडीज, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज टू एक्चुअली गेट अप्रूव्ड, ठीक है। और उसी जैसे ही वो अप्रूव हुई तो पेशेंट वो प्रिस्क्रिप्शन लेके फार्मेसीज के पास गया, ठीक है, एंड दोस फार्मेसीज इनवॉइस द इंश्योरेंस कंपनीज थ्रू द सिस्टम एंड इंश्योरेंस कंपनीज एग्जीक्यूट द पेमेंट साइकिल एज वेल एंड फार्मेसी डज द डिलीवरी टू द पेशेंट, ठीक है। तो इस तरह से हमारा एक पूरा यूज केस थ्रू एन NFT टोकन, ठीक है, ब्लॉकचेन ने ऑटोमेट करके दिया, ठीक है। अब इसमें हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज भी थी जिनके पास मल्टीपल रीइंबर्समेंट्स की रिक्वेस्ट आती हैं, ठीक है। हमने उस प्रोसेस को ऑटोमेट करके सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन
उसकी फार्मेसी की इंफॉर्मेशन, उसकी डॉक्टर की इंफॉर्मेशन, उसकी ऑल द जो उसके मेडिकल प्रोसीजर्स जो जो उस पे हुए हैं वो सारे हमने उस NFT में स्टोर करके इंश्योरेंस बॉडीज को पास कर दी। इंश्योरेंस बॉडीज ने उसको साइन करके अप्रूव करके रीइंबर्समेंट भी हमारे सिस्टम के थ्रू टू फार्मेसीज एज वेल एज टू द डॉक्टर्स एग्जीक्यूट कर दी। ठीक है, सो दिस कॉन्सेप्ट वाज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड in Germany as well. So this was one of the projects. So I actually presented it to actually give you a concept कि किस तरह से business cases जो हैं वो automate किए जा रहे हैं through a blockchain based systems. अच्छा, दूसरा हमारा जो प्रोजेक्ट था फ्यूचर, ठीक है, इट्स रियली अमेजिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मेक्सिको में ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ। इसमें आप कह लें कि देयर वाज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट फार्म्स, ठीक है, जहां पे मतलब एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है एंड दे एक्चुअली कल्टिवेट डिफरेंट फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ठीक है, इन द फेवरेबल एनवायरनमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक फ्रूट। ठीक है, इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया, दे एक्चुअली इनेबल पीपल टू इन्वेस्ट इनटू फ्रूट्स। ठीक है, क्योंकि आपका जो ब्लॉकचेन है, ठीक है, वो आपको कॉइन्स की और टोकन्स की ट्रांजैक्शन की आपको फैसिलिटी देता है। ठीक है, तो एक्चुअली इट इनेबल्ड यू टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दोस फ्रूट्स एंड whenever those fruits got sold in the vendor market, ठीक है, they were able to get returns, क्योंकि पता होता था कि किस बंदे ने कितना इन्वेस्ट किया है, उसकी कितनी यील्ड हुई है। ठीक है, उस यील्ड का प्रोसेस। ठीक है, अब हमने स्मार्ट फार्म्स बिल्ड किया। स्मार्ट फार्म्स IoT डिवाइसेस से हमने कॉन्स्टेंटली फ्रूट हेल्थ को भी ब्लॉकचेन पे अपडेट किया। ठीक है, तो हमारे पास ब्लॉकचेन के ऊपर फ्रूट हेल्थ की नॉलेज, फ्रूट हेल्थ की इंफॉर्मेशन भी आ गई। अलॉन्ग विद दैट we got the information of how much yield was being generated. ठीक है, तो उस बेसिस पर हमें ये अंदाजा हो गया कि क्या एक तो फेवरेबल एनवायरनमेंट क्या है किसी भी फ्रूट की। ठीक है, क्योंकि हम हेल्थ मॉनिटर कर रहे थे तो हमारे पास वो डाटा भी जनरेट हो रहा था। फिर हमारे पास कितनी इनकम जनरेट हुई फॉर एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टर। ठीक है, उस चीज को भी हम थ्रू IoT इस चीज को इंश्योर कर पाए। ठीक है, दिस वाज रियली ग्रेट कॉन्सेप्ट जो कि मतलब इम्प्लीमेंट किया गया। ठीक है, इसमें आप देखें ऐसे फ्रू फार्म्स थे। ठीक है, फ्रू फार्म्स में हमारे पास डिफरेंट आपके प्लांट्स लगे हुए हैं। ठीक है, और उन प्लांट्स की इंफॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स को पास ऑन हो रही है, क्योंकि उनकी हेल्थ मॉनिटर होके ब्लॉकचेन पे स्टोर हो रही है एंड ब्लॉकचेन के हमने एक वॉलेट एप्लीकेशन इन्वेस्टर्स को दे दी है। ठीक है, सो दे कैन सी ऑल द रेलेवेंट डाटा दैट इज जनरेटेड फॉर दो स्पेसिफिक प्लांट्स जिस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया। ठीक है, और जब वो वहां से मतलब उनकी कटाई होकर फिर वो मार्केट में डिलीवर हुए, ठीक है, तो भी हमारे पास जो हमारी फ्रूट मार्केट थी दैट वाज आल्सो ऑटोमेटेड थ्रू द प्रोसेस कि यार जो भी हमारी सेल्स हो रही है फ्रूट्स की वो भी हमारी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन के ऊपर आ रही है। ठीक है, और उस बेसिस पर हम लोग कह लें कि एंड यूजर को प्रोडक्ट भी पहुंचा रहे हैं। ठीक है, जो हमारा एंड यूजर है उसके पास भी हमारे पास उसको कंप्लीट फ्रूट की लाइफ साइकिल उसके पास भी अवेलेबल है। ठीक है, और इन्वेस्टर्स के पास फॉर अर्निंग पर्पसेस वो भी अवेलेबल। सो वी एक्चुअली build these two use cases for investors as well as for the end users to actually see what they are eating. ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल टेक्निकली उसकी बात करूं तो मतलब इसमें मतलब रेलेवेंट टेक्नोलॉजी यूज हुई। ठीक है, देयर वर ऑर्डर पेयर्स, ठीक है, चेन कोड इन्वॉल्व था। पीयर चेन कोड हमारा कहते हैं उस स्पेसिफिक ब्लॉकचेन कोड को, ठीक है, जिसकी बेस पर हम जो मतलब प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में, ठीक है, जो हमने बात की थी ना प्रूफ ऑफ अथॉरिटी की कि डिफरेंट बिजनेस केसेस में प्रूफ ऑफ अथॉरिटी एज अ कंसेंसस यूज होता है। ठीक है, तो चेन कोड हमारा वो स्पेसिफिक कंसेंसस एल्गोरिथम कोड है जो कि मतलब प्रूफ ऑफ अथॉरिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, पीयर हमारे वो हैं जो हमारे नोड्स को होस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस केस में। ठीक है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज हैं। ठीक है, जो हमारे प्रूफ ऑफ अथॉरिटी थी उसमें हमारे इनिशियली हमारे जो अथॉरिटी वाले हैं वो डिफाइन कर दिए जाते हैं कि कौन कौन इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर सकेगा। ठीक है, उनके पास भी पूरा चेन कोड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इस कंडीशंस की बेस पर किसी भी ट्रांजैक्शन में वैलिडेट होना है। ठीक है, अच्छा अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हमारा था दैट वाज अ सप्लाई चेन ऑटोमेशन प्रोजेक्ट एज वेल।
इट वाज कॉल्ड सिंकफैब, जिसमें हमारे ऑक्शन प्रोसेस, ठीक है, जो कि मतलब हमारा बिजनेस एक्वायरिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, और हमारा जो डिलीवरी प्रोसेस है टू द एंड कंज्यूमर, ठीक है, वो हमने इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग हाइपरलेजर फैब्रिक, ठीक है। इससे मतलब कह लें हमारे पास रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, कह लो कि जो बंदा फॉर एग्जांपल किसी बिजनेस प्रोसेस में कोई भी अगर फॉर एग्जांपल कोई चीज खरीदना चाह रहा है तो वो अपना एक रिक्वेस्ट RFP फ्लोट करेगा मार्केट में, ठीक है, लोग उस पर अपने अपने कोड्स देंगे कि भाई हम ये प्रोडक्ट जो है वो इतने में सप्लाई करेंगे, ठीक है। वो फिर कह लो कि आपका रेलिवेंट आपका जो टेंडर प्रोसेस होता है, बेस्ड ऑन दैट बेस्ट टेंडर को अवार्ड होता है और उसको ऑर्डर चला जाता है टू एक्चुअली स्टार्ट प्रोड्यूसिंग दैट रेलिवेंट प्रोडक्ट जो कि मतलब रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो इट वाज सिंकफैब वाज लाइक दैट, ठीक है, वेयर buyer actually submits an RFQ, ठीक है, share the relevant information, ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अपना कोड सबमिट करते हैं, ठीक है, टू दैट सिस्टम, ठीक है। फिर हमारे पास हमारा जो सिंकफैब का सिस्टम था वो अश्योर कर रहा था कि हमारे सप्लायर की और जो बायर है और मैन्युफैक्चरर है उनकी रेलेवेंट कम्युनिकेशन टू अश्योर द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, ताकि मतलब कोई भी इसमें लूप होल्स ना हो और मतलब कि किसी को ज्यादती करके किसी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड ना हो, तो प्रोडक्ट टीम वाज देयर टू एक्चुअली मैनेज दैट कम्युनिकेशन एज वेल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे मतलब कह लो पेमेंट सबमिट हो जाती थी, जो कि मतलब हमारा एज अ जो सिंकफैब सिस्टम था वो एज अ एस्क्रो सर्विस भी ऐड कर रहा था, ठीक है, जो कि पेमेंट को होल्ड करेगा टिल द टाइम हमारा जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर नहीं हो जाता, ठीक है। कॉन्स्टेंटली हमारा मैन्युफैक्चरर जो था, जो हमारे सिस्टम के ऊपर जो भी ऑर्डर मिला है उसका पूरा प्रोडक्शन साइकिल जो है वो कॉन्स्टेंटली ब्लॉकचेन नेटवर्क के ऊपर अपडेट करेगा, ठीक है, सो दैट बायर हैज द रिकॉर्ड ऑफ टू ट्रैक ऑल द प्रोडक्शन दैट इज हैपनिंग, ठीक है, क्योंकि वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर पे स्टोर हो रही है, दैट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू द बायर एज वेल, ठीक है। इंस्पेक्शन भी वो किसी टाइम पे भी कर सकता है, तो इसलिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी कॉन्स्टेंटली जनरेट हो रही होगी एंड विल बी अवेलेबल टू बी एबल टू सीन बाय द बायर एज वेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद उसी प्रोसेस में शिपिंग कोड्स भी इन्वॉल्व थे, ठीक है, जिसे मतलब शिपिंग कंपनीज आ जाती हैं, वो अपने मतलब लेबल्स अटैच करते हैं, ठीक है, ऑर्डर पिकअप करते हैं मैन्युफैक्चरर से एंड दे डिलीवर इट टू द बायर एज वेल, ठीक है। वो भी प्रोसेस थ्रू कंप्लीट टेंडर प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हो रहा था विद इन दिस सिस्टम, ठीक है। और सिंकफैब की टीम जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को अश्योर कर रही थी, ठीक है, बाय सीइंग द प्रोसेस, क्योंकि मतलब जो उन्होंने मैन्युफैक्चरर जिनको ऑनबोर्ड किया था, ठीक है, उनकी सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन उनके पास स्टोर थी, ठीक है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो उसको प्रोसेस कर रहे थे अपने लिहाज से और अवेलेबल कर रहे थे टू द बायर, ठीक है। फिर शिपिंग कंपनी की पेमेंट्स थ्रू डिफरेंट चैनल्स वो भी एग्जीक्यूट की गई। अच्छा, उसके बाद जो बहुत जबरदस्त यूज केस हमारे पास कह लें कि लास्ट 2 to 3 years में लाया गया, को बिफोर कोविड, आई एम टॉकिंग अबाउट बिफोर कोविड, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने एक्चुअली had a huge cost reduction because they were not able to control the counterfeiting, ठीक है। तो actually Nissan was losing a lot of money as well because of the counterfeiting products, so they had to come up with a concept कि मतलब हम वो किस तरह से उस counterfeiting जो spare parts उनके सेल हो रहे हैं मार्केट में, how would they be able to control that, ठीक है। So blockchain as a concept came up with it to actually assure कि मतलब हमारा जो स्पेयर पार्ट फैक्ट्री से निकला है, ठीक है, they have the relevant traceability for every part that is being distributed in the global market, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप कह लें कि डिफरेंट यूज केसेस इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, जैसे मतलब इंश्योरेंस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं अगर हम फॉर एग्जांपल हेल्थ ऑफ द कार्स को मैनेज कर रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, दैट इज आल्सो रियली बिग यूज केस, क्योंकि ऑलरेडी जो मतलब हमारे ऑटोवेयर्स जो सिस्टम आ गए हैं, ठीक है, they are collecting the automobile health of your car and storing it in a relevant cloud as well, ठीक है। तो उसको अब ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करने का साइकिल चल रहा है to actually make the information available as well as to all the stakeholders and actually helping insurance companies as well to कि वो अपने वो प्लान कर सके चीजों को।
ठीक है। उसके बाद मैं कह रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल हम ब्लॉकचेन नेटवर्क को इंटीग्रेट कर लेते हैं तो देयर कैन बी एन इजी कंपैरिजन ऑफ हाउ देयर कार्स आर एक्चुअली परफॉर्मिंग इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और मेंटेनेंस रिकॉर्ड भी हमारा ऑटोमेट हो सकता है, ठीक है, रीसेल वैल्यू को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। प्रीमियम प्राइस चार्ज की जा सकती है क्योंकि हमारा मतलब कह लें कि जब हम फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस को, ठीक है, और कार हेल्थ को इतनी ज्यादा वो कर रहे हैं, ठीक है, डाटा के लिए अवेलेबल कर रहे हैं टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, तो हम मतलब कह लो कि कार ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए भी ये एक बेनिफिट है कि वो अपनी प्राइस को प्रीमियम कर सके बेस्ड ऑन दिस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। अच्छा उसके बाद थोड़ा सा मतलब कह लें कैरियर पे बात कर लेते हैं कि अभी वेब 3.0 में ब्लॉकचेन हैज बीन द कोर टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेब 2.0 में हमारे पास सारे जितने भी जायंट्स इन सोशल मीडिया, ठीक है, गूगल, ये सब मतलब वेब 2.0 में आए। अब दुनिया जब वेब 3.0 की तरफ जा रही है, वेब 3.0 में मतलब कह लो कि इट्स मोर पावर टू द यूजर, ठीक है। तो ब्लॉकचेन हैज बीन द पायनियर ऑफ द वेब 3.0 टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो आई थिंक we are a bit late, but it's still not that late to actually pursue your career in this technology as a whole, ठीक है। पर्सपेक्टिव हमें इस चीज को देखना पड़ेगा कि हम इसको अपने कैरियर में अडॉप्ट करें, यूनिवर्सिटीज इस चीज को अडॉप्ट करें एज देयर कोर courses as well, just like they are teaching AI. Blockchain should become part of regular elective in every university that is possible, because there is a huge demand all over the world, and the companies that are working are unable to maintain that capacity. तो फिर जाहिर सी बात है वो relevant काम जो है वो दूसरे मुल्कों की तरफ ड्रॉप हो रहा है, of course, ठीक है। तो we actually need to work on it seriously. क्योंकि still in the early adopters phase, blockchain is still scratching the surface of its potential, ठीक है। अभी तक relevant potential जो है वो achieve नहीं हो सका, ठीक है। Pakistan still lacks talented, enthusiastic blockchain developers. There is a huge demand out there, and we are not getting sufficient support from the academia or relevant industries as well, ताकि कि हम मतलब उस कैपेसिटी को, उस रिक्वायरमेंट को मीट कर सकें जो दुनिया में इस टाइम पे एग्जीक्यूट कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। So there is a huge disconnect between what the industry is asking for and what the academia is producing, ठीक है। So we are at Fusion and looking to provide opportunities as well to actually give a career path to the young people and help them pursue their careers in this space as well. अच्छा, फ्यूचर ऑफ द ब्लॉकचेन कह लें कि इसमें थोड़ी सी मतलब गपशप है कि मतलब आपके मतलब बहुत ज्यादा दुनिया में अडॉप्शन ब्लॉकचेन की बहुत ज्यादा बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इन टर्म्स ऑफ NFTs, ठीक है। इट इज अ बिग गेम, ठीक है। जब से NFT ने टेक ओवर किया है, एवरी रेलेवेंट इंडस्ट्री इज जंपिंग इनटू इट, लाइक रियल एस्टेट, ठीक है, आर्ट्स, all the supply chain use cases that I actually discussed. Everybody is actually depending on the concept of NFT because उसमें आप information related to any specific entity token के अंदर store कर सकते हैं, ठीक है। It's called a non-fungible token, ठीक है। Do give a read about it, ठीक है। मैं kind of उसमें इतना in depth उस चीज को इस चीज में cover नहीं कर सका because of limited time as well. Inshallah in future I will go into further details of the tokens, of the NFTs, ठीक है। But right now industry is booming towards it. Everybody in the world is actually looking to actually come to this distributed environment for their business cases, ठीक है। उसमें NFT has been the top of the list, ठीक है। सिर्फ 2021 में NFT sales reached $17.7 billion, ठीक है, from $82.5 million in 2020, ठीक है। सिर्फ एक साल के अरसे में it grew 17 times, ठीक है। So this was actually what you can say a really good time to be in, to actually jump into this as a career path, ठीक है। अच्छा, उसके बाद just like now Facebook shifted to metaverse, ठीक है, they are pursuing metaverse as a technology, ठीक है।
उसमें भी बहुत ज्यादा मेन रोल है NFTs का, ठीक है, क्योंकि डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वर्चुअल एसेट, ठीक है, कैन बी डन थ्रू NFT, ठीक है। तो NFT का बहुत बड़ा यूज केस है इन टर्म्स ऑफ मेटावर्स, क्योंकि आप उसमें वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो यू नीड वर्चुअल करेंसी टू एक्सचेंज वैल्यू एज वेल विद इन दैट एनवायरनमेंट, ठीक है। तो गेमिंग हो गई या डिफरेंट यूज केसेस, रियल एस्टेट यूज केसेस हो गए जो कि मतलब मेटावर्स में इंप्लीमेंट हो रहे हैं, they will all utilize NFT as a core component of their product. And we also really hope कि हमारा पाकिस्तान में भी इसकी adoptability बढ़े, क्योंकि there are a lot of use cases in the regulatory bodies as well. For example, we have NADRA, we have SCCP, we have stock exchanges, we have different markets that are dealing with different commodities. Real estate is so big in Pakistan. Trading industry, export industry can actually come to this as well. To actually increase their scale, ठीक है, क्योंकि मतलब दुनिया जिस पेस से मूव कर रही है, अगर आप उस पेस के साथ मूव नहीं करेंगे तो you're left behind. And I think the regulatory bodies should actually jump in to actually regulate these things up for the people, ठीक है. Many countries are doing it for the growth of their country, so should we. So that's kind of it from my side. Any relevant questions you can actually come up. All of you can raise your hands if you have any questions. For those of you who have asked question in the Q&A section, they can unmute their mics and ask the question from the trainer through mic. All right, Mohammed Rizwan, you can unmute the mic and ask the question. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डेटा साइंस और ब्लॉकचेन को हम किस तरह कंबाइन कर सकते हैं एज अ फ्यूचर, मतलब अगर स्टार्टअप में काम करना हो या ओके, तो बेसिकली मतलब आप कह लें कि data sciences are the algorithms to actually build decision making over a big data, right? So blockchain is kind of what you can say, it is a source of data, ठीक है। अभी मतलब आप कह लें कि it's been 4 to 5 years जिस टाइम में वो डाटा बिल्ड हो रहा है, ठीक है। तो अभी मतलब डाटा क्लस्टर इतना बिग नहीं है कि आप मतलब उसको उस लेवल पे उस डाटा साइंसेस अप्लाई कर सको, ठीक है, लाइक आप अदर डिफरेंट फाइनेंशियल उस पे करते हो, ठीक है। लेकिन ऑफ कोर्स डाटा साइंसेस के कॉन्सेप्ट्स आगे इसमें इंटीग्रेट होंगे लाजमी, ठीक है, जस्ट टू बिल्ड अप एनालिटिकल टूल्स and build up decision making systems onto it as well, because it will provide big data as in the times to come, kyunki all the financial information regarding the virtual currencies are being stored over there, and as the world moves on, many data based applications will be built over it. ओके सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, सो मेरा क्वेश्चन है, जो ये NFTs का कॉन्सेप्ट है, तो ये बैंकिंग में भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, लाइक एवरी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अभी जैसे कि ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में या व्हाटएवर दे आर सेविंग, सो इफ वी Okay, you can go ahead if you completed your question. Yeah, so if this kind of system is implemented inside the bank, so वहाँ पे NFTs का रिकॉर्ड, मतलब NFTs में सारे रिकॉर्ड आपके सेव हो हर ट्रांजैक्शंस का, तो इस तरह से तो ये इम्प्लीमेंटेशन इज पॉसिबल। अच्छा, NFT जो है ना वो मेनली इज रिलेटेड टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एसेट या कमोडिटी। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि एक पेंटिंग है, ठीक है, उसको मैं डिजिटली रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं नेटवर्क के अंदर, ठीक है, तो उसको मैं थ्रू एन NFT रिप्रेजेंट करूंगा कि यार उस पेंटिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, क्या कलर्स यूज हुए, किसने बनाई, कब बनाई, ठीक है, ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं एक NFT में स्टोर करके उसको ब्लॉकचेन पे मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह बैंकिंग की ट्रांजैक्शन हो रही है ना, दैट कैन बी मैनेज एज अ ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, रादर देन अगर मैं सोचूं कि वो NFT में मैनेज हो सकती है, वो ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर में मैनेज हो सकती है कि यार कि जो भी हमारी रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो इन द फॉर्म ऑफ लेजर
स्टोर हो जाए, ठीक है, क्योंकि बैंक भी प्राइवेट लेजर तो मेंटेन कर रहा होता है ट्रांजैक्शन का, ठीक है। तो बैंकिंग के केस में हमारी हर ट्रांजैक्शन जो है वो पब्लिक लेजर में स्टोर होती है, बट बैंक इज नॉट इन फेवर ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पब्लिक लेजर फॉर देयर ट्रांजैक्शंस, ठीक है। दे विल मेक अ प्राइवेट लेजर, ठीक है, माइट बी, जो कि सिर्फ उन्हीं के पास अवेलेबल हो, ठीक है, और इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर हो सके, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कहोगे एनएफटी यूज होता है तो नो, लेकिन ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर यूज होता है यस। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन। जैसे कि ब्लॉकचेन में ना जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो मोस्टली वॉलेट्स की कंपनीज जो होती हैं वो आपसे अपना कमीशन वगैरह जो काटती है, तो ये काइंड ऑफ बैंकिंग नहीं है? मतलब कौन कमीशन काटते हैं? जो वॉलेट से आप जो एक ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब उसे किसी और को ट्रांजैक्शन सेंड करती है, क्रिप्टो करेंसीज मोस्टली मतलब कि इन हाँ, केस ऑफ एक ट्रांजैक्शनल फीस इन्वॉल्व है, ठीक है, बट वो मतलब कह लें कि फुल स्पेसिफिक नहीं है कि इतनी ही कटेगी, ठीक है। देयर आर मल्टीपल मोड्स थ्रू व्हिच द फीस इज डिसाइडेड, ठीक है, और आप मतलब कह लो कि उस लिहाज से अपनी ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इट्स नॉट दैट मच एज कंपेयर टू द बैंक्स। ओके, राइट, थैंक यू सर। जी जी। अच्छा सर, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो। जी जी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि हम किस तरह गवर्नमेंट को कन्विंस कर सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने इश्यूज रेज किए हैं कि फॉर एग्जांपल किसी बंदा किसी और को भेज रहा है, उसकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, या फिर ये सिक्योर नहीं है, ये जितने भी उनके इश्यूज हैं, हम उन्हें किस तरह कन्विंस कर सकते हैं? किसको कन्विंस करना है? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट मेनली दुनिया में कन्विंस्ड है कि दिस टेक्नोलॉजी हैज द स्ट्रेंथ टू एक्चुअली प्रोवाइड द ट्रेसेबिलिटी, ठीक है, लेकिन certain misuses of the technology is actually is the hindrance of major adoptability, ठीक है, मतलब कि फुल स्केल पर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट उसके मिसयूजेस की वजह से नहीं की जा सक रही, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग में यूज होती है या डिफरेंट फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस में यूज होती है, ठीक है, बट सर्टेन तरीकों से इसको रेगुलेट किया जा सकता है, जैसे जापान ने किया, जैसे चाइना कर रहा है, इंडिया ने किसी हद तक कर लिया, ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी जाहिर सी बात है पाकिस्तान उस तरह से उस चीज को अभी तक अडॉप्ट नहीं कर सका, ना ही उस चीज को अंडरस्टैंड कर सका है कि यार देयर इज एन एग्जिस्टेंस एंड वी नीड टू कम अप विद मैकेनिज्म टू एक्चुअली ब्रिंग इट इनटू सर्कल। किसी ना किसी तरह हमें इस चीज को सर्कल में लाना है, ठीक है। अब वो अंडरस्टैंडिंग के लिए हम भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि यार हम वी एक्चुअली गिव different trainings to different government organizations as well कि भाई this is the use case and we should be either closing eyes towards it, we should actually go and understand it and bring it into the loop of the government processes जो कि हो रहे हैं। ठीक हो गया सर। वैसे मैं ये क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंटेशन हो जिसके अंदर कोई हम प्रूव कर सकें कि ये चीज़ इस तरह से हो रही है, हम फॉर एग्जांपल हम अपना कोई ब्लॉकचेन बनाते हैं, उसके ऊपर हम हर एक चीज़ को ट्रेस कर सकते हैं, हम सिक्योर बना सकते हैं, क्योंकि जिस जगह पे मैं हूँ हो सकता है मैं अगर किसी से बात करूँ तो मे भी पॉसिबिलिटी हो कि इसे सुना जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखें हर ब्लॉकचेन नेटवर्क का कोड जो है वो पब्लिक होता है, ठीक है। सो अगर फॉर एग्जांपल किसी यूज केस के लिए हमें पब्लिक नेटवर्क पे नहीं जाना, ठीक है, तो हम सिंपली उस कोड को अपने पास डाउनलोड करते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से ब्लॉकचेन नेटवर्क को बिल्ड करते हैं टू एक्चुअली इंप्लीमेंट फॉर सर्टेन यूज केसेस। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की यूज केस, देयर आर अ लॉट ऑफ यूज केसेस दैट आर बीइंग इंप्लीमेंटेड अराउंड द वर्ल्ड, जिससे मतलब कह लो कि ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने का मैकेनिज्म को फुली कस्टमाइज किया जा सकता है बेस्ड ऑन
ऑन कस्टम रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी ब्लॉकचेन नेटवर्क ने एक तरीका कार डिफाइन कर दिया टू वेरीफाई सर्टेन ट्रांजैक्शंस तो हम वही यूज करें, ठीक है। देयर कैन ऑलवेज बी अ मच बेटर वेज और मच कस्टमाइजेबल वेज फॉर आर यूज केस, ठीक है, जो हम इंप्लीमेंट करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स जस्ट दैट कि यार गवर्नमेंट को सिर्फ ये समझने की बात है कि भाई आप लोग इस चीज को रेगुलेट करें टू ब्रिंग इट टू द सर्कल, ठीक है। एंड इंशाल्लाह यू विल बी seeing the prosperous country ahead if we actually adopt this as a technology यार। ठीक हो गया सर, थैंक यू। सर Do we आवाज आ have रही any है? more questions? जी Yes, we आवाज आ can रही है hear अब? you. हेलो जी आवाज आ रही है, आप बोलें। सर मेरे दो सवाल हैं। एक तो ये कि ये मेटावर्स, ब्लॉकचेन और ये क्रिप्टो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पे नॉर्मली सुना है कि मैंने क्रिप्टो में लगा लिए तो इतने पैसे कमा लिए, क्रिप्टो अप हो गया, क्रिप्टो डाउन हो गया, सॉर्ट ऑफ अ ट्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, इसकी रियलिटी एग्जैक्टली वैसे किस हद तक है एग्जिस्ट कि हाँ ये ट्रेडिंग होती है, या ये ट्रेडिंग एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, इसको प्रैक्टिकली एग्जिस्टिंग नहीं करती। एक पॉइंट तो मेरा ये है। दूसरा ये कि इन एग्जैक्ट ग्राउंड बेस्ड रियलिटी में मेटावर्स और ये ब्लॉकचेन के अंदर क्या ऐसा मेजर डिफरेंस है जिसके ऊपर हम बोले कि यार ये इंडस्ट्री में यूज होता है और ये जो है सिर्फ एज अ ट्रेडिंग फॉर वर्चुअल अमाउंट ऑफ मनी या इस तरह के कॉन्सेप्ट पे यूज होता है। अच्छा देखें, जो वर्चुअल करेंसी है ना, इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट दैट इज यूटिलाइजिंग ब्लॉकचेन, ठीक है। ब्लॉकचेन इन सेल्फ इज नॉट अ वर्चुअल करेंसी, ठीक है। तो वही मैंने जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डिफरेंट यूज केसेस बताए, दे आर ऑल डिफरेंट यूज केसेस अदर देन द वर्चुअल करेंसीज दैट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द ब्लॉकचेन आर्किटेक्चर, ठीक है। तो उस चीज को एक तो मतलब कंफ्यूज ना करें, मैं मतलब कह लो कि एज अ टेक्नोलॉजी इसका आपको स्ट्रेंथ समझा रहा था। अच्छा, बेसिकली जो आपका क्वेश्चन है ट्रेडिंग से रिलेटेड, ठीक है, तो मतलब इट्स काइंड ऑफ यार काफी स्केप्टिकल मार्केट होती है, क्योंकि देखें डिफरेंट स्टॉक मार्केट है ना, तो स्टॉक मार्केट कैन बी रेगुलेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। रियल एस्टेट मार्केट कैन बी रेगुलेटेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कि यार एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में वो चीज एग्जिस्ट करती है, उसकी प्राइस को किसी ना किसी तरह रेगुलेट किया जा सकता है बाय द रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। वर्चुअल करेंसीज में यार ये मसला ये है कि मतलब इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड बीइंग ट्रेडेड, ठीक है, और हर जगह का सप्लाई एंड डिमांड साइकिल जो है वो उस लिहाज से मैनेज होकर प्राइस जो है मतलब कंट्रोल में नहीं है। तो पीपल आर, लोगों के बहुत पैसे डूबते भी हैं, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ऑफ व्हाट यू कैन से जो मतलब प्रेफरेबल मोड ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। कि यार मतलब इफ यू हैव लिमिटेड मनी एंड यू गो ऑल आउट इन ट्रेडिंग, इट्स नॉट प्रेफरेबल एट ऑल, ठीक है। बहुत ज्यादा नुकसान खदशा इसीलिए है कि ये किसी भी एक रेगुलेटेड बॉडी के अंडर इसकी ट्रेडिंग नहीं आती, ठीक है। एवरीबडी इज डूइंग इट ऑन देयर ओन, एवरीबडी इज ट्राइंग टू डिफाइन द ट्रेंड्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन देयर ओन, ठीक है। तो एक हैपहैज़र्ड मार्केट है, ठीक है। और जो डिफरेंट ट्रेंड्स जो कि मतलब ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए एग्जीक्यूट की जा सकते हैं, या किस टाइम पे खरीदना है, किस टाइम पे बेचना है, ठीक है, वो भी अभी तक उस तरह से इस चीज पे अप्लाई नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि मतलब सेंटिमेंटल एनालिसिस उस तरह से प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस वजह से मतलब कह लो इट्स नॉट प्रेफरेबल एट ऑल टू एक्चुअली जंप इनटू इट ऑल आउट फ्रॉम द ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। जो आपका दूसरा क्वेश्चन था ब्लॉकचेन और मेटा, सॉरी आपकी आवाज कट गई है। की आवाज नहीं आ रही। हेलो, मेरा ये सवाल था, आवाज आ रही है?
I cannot understand you, brother. You are breaking. So, अगर आप question type कर दो. या इतनी देर में कोई और क्वेश्चन है तो वो कर ले, आती देर में क्वेश्चन राइट कर ले. Amna, do you have any questions? Farooq, you can type your question in the chat section. The speaker will answer you there. Amna, if you have any questions, you can proceed. If anybody else has a question, they can raise the hand. Sir, we have a question in the chat section from Wasim Yasin. Can you suggest a roadmap? How can they acquire this technology in learning by learning any languages or any softwares? So वो उस हवाले से career aspect के हवाले से एक learning roadmap के बारे में पूछ रहे हैं. If you can suggest a roadmap for that. So okay, so basically मतलब पहले मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा आर्किटेक्चरल नॉलेज देने की कोशिश करें अबाउट द टेक्नोलॉजी की, यार टेक्नोलॉजी काम किस तरह कर रही है, ठीक है, ताकि मतलब फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो टुवर्ड्स द इम्प्लीमेंटेशन आपको इस बात का अंदाजा हो कि यार हाउ विल अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वर्क, ठीक है, हाउ विल अ डी ऐप वर्क, ठीक है, मतलब किस तरह की क्लाइंट साइड कौन सी मैं फ्रेमवर्क यूज करूं, तो व्हाट परफॉर्मेंस वुड आई बी एबल टू अचीव, ठीक है. फर्स्ट आप आर्किटेक्चर लेवल नॉलेज गेन करें, देन गो टुवर्ड्स द सॉलिडिटी इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है. सॉलिडिटी अब बहुत एडवांस हो चुकी है. आई थिंक ऑलरेडी 11-12 वर्जन्स आर देयर दैट आर लॉन्च ऑलरेडी, ठीक है, और कॉन्स्टेंटली उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रही है, ठीक है. तो बेसिकली हम मतलब कह लो इस चीज को इस तरह से लेके चलते हैं कि यू गो टुवर्ड्स आर्किटेक्चर लेवल लर्निंग, देन यू कम टुवर्ड्स सॉलिडिटी और रस्ट. दीज आर द टू फ्रेमवर्क्स दैट आर रियली फ्लरिशिंग इन द ब्लॉकचेन स्पेस. रस्ट लैंग्वेज का बहुत स्कोप है इन टाइम्स टू कम. आई थिंक यू शुड एक्चुअली एक्सप्लोर दैट एज वेल फ्रॉम द डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव. किसी और का क्वेश्चन है? If not, we can then wind up the session. शुजात जलानी का एड्रेस करते हैं, वो कह रहे थे पहले जो ट्रांसैक्शन इन्फो सिर्फ आपको बोलना पड़ेगा शायद चैट में, दोबारा उनका क्वेश्चन पोस्ट करते हैं. शुजात मैंने आपको दोबारा चैट में तक महदूद थी वो स्पेसिफिक कंट्रोलिंग पावर्स एंड नाउ थ्रू ब्लॉकचेन दैट पब्लिक पर्टिकुलर info will be shared as broadcasting to whole network as max node like mine will actually be accessible to anyone. बेसिकली जो इंफॉर्मेशन जो पब्लिकली अवेलेबल का कॉन्सेप्ट है ना, वो ये इट्स अ रीडेबल इंफॉर्मेशन, ठीक है. एंड जैसे मैंने बताया कि वंस इट इज रिटन इन द पब्लिक लेजर, इट इज नॉट अपडेटेबल, इट इज नॉट डिलीटेबल, ठीक है, क्योंकि वो ब्लॉक का हिस्सा बनकर लेजर में लिख दी गई है, ठीक है. तो वो तो अपडेट नहीं होती, इसके मतलब कि वो हैक नहीं हो सकती, ठीक है. देयर इज नो मोड. अगर फॉर एग्जांपल हम लेजर को अवेलेबल कर देते हैं, बैंक्स जो अपना लेजर अवेलेबल नहीं करते उनके अलग अलग इंसेंटिव्स हैं उसके पीछे, ठीक है, बिकॉज दे एक्चुअली नीड टू यूज योर मनी इनटू डिफरेंट अदर वेज टू अर्न एज वेल फ्रॉम इट. सो मतलब कह लो कि इस तरह से बैंकिंग यूज केस जो है वो इस पे एप्लीकेबल नहीं होता. तो ये मेरा कॉन्सेप्ट है.
Did I clarify my question? I think Shujat Jilani is not present in the session anymore. Yeah, he is actually. Shujat, if you can let us know if that was helpful. किसी और का कोई क्वेश्चन है? Okay, Mohammed Faisal, you can unmute the mic and ask the question. No, I don't have any question actually. All right. ठीक है. If nobody has any questions, then we can wind up the session. Okay, perfect. Okay, thank you everyone. Thank you everyone for your time. Thank you And, everyone for joining the session. Ji sir, please proceed. You were So, about to say something. You're always most welcome to ask any questions at any point of time on our social media pages as well, or matlab email ke through bhi. You can actually come up with any confusions or career paths or any help that you need. We are available as well to help you out, inshallah. Thank you so much, sir, for delivering such an insightful session. Let's Assalamualaikum. end the session. Okay. Hello. Yes, Rizwan, we can hear you. मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कोर्स स्टार्ट करवा रहे हैं डाइस एनालिटिक्स में ब्लॉकचेन के रिलेटेड? जी हाँ, हम स्टार्ट करा रहे हैं इंशाल्लाह ईद के बाद हमारा Q2 के अंदर we are launching a proper training on it. Okay. Yeah. All right, so let's wind up the session then. Thank you everyone for joining. Thank you so much, sir. I am about to end the session. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Allah Hafiz.